And for today's session, we are going to have Professor Shashikant Hippargi sir. I would like to welcome Professor Shashikant Hippargi for this session. And before he starts his session, I would like to give Professor Shashikant Hippargi sir, who is working as an assistant professor in ENTC department at NB Navle Sinhagad College of Engineering, Solapur. He is also a coordinator for student development and career counseling cell, that is SDCC, at institute level. He takes care of training and placement for coordinate all the activities regarding the students club in the institute. Also, he worked as coordinator for IQAC, that is Internal Quality Assurance Cell, and got NAC A grade at the very first cycle. He has got total 20 years of teaching experience. He is pursuing his PhD in integration of wireless network for rural India, a green network approach. He has completed his MTech in digital communication from BMS College of Engineering, Bengaluru in 2006. He has completed his BE ANC from BLDA Dr. VPPG Halkatti College of Engineering and Technology, Vijaypura in 2001. He has also qualified GATE examination. He has worked as HOD for ENTC, CSE and IT departments. He has got 3 times Best Teacher Award. Also, he has initiated a startup in the institute, Saksham Medicare Equipment and Services. He was also felicitated by IIT Mumbai at national level for securing A grade in our online test. He is a coordinator and resource person for online workshop on conducting effective online classes through free softwares. Around 484 participants got benefited from various schools, polytechnic and engineering colleges. 15 students have completed ME under his guidance. He has published papers in national and international journals. That is, the total number is 35. He has delivered total 39 guest lectures, and he has attended 52 workshops and faculty development programs as of now. So with this short introduction, I would like to welcome Professor Shashikant Hippargi sir and request to start his session. Over to you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Deshmukh sir, for the nice introduction. Is my voice audible, everybody? Is my Yes, voice sir. audible? Yeah. Thank you, sir. Before starting, let me tell you one thing. शायद आप मेरा पहले भी lecture बैठ चुके हो, and most of you, like I don't know how many of you have attended, but हमने एक बीच में एक session लिया था Sunday को. That was the skills required by the students for developing your career. So मेरा जो सबसे पहला जो रूल है वो ये रूल है कि ये टू वे कम्युनिकेशन होगा. जो भी हम बात करेंगे वो टू वे रहेगा, एंड टू एंड. मतलब बीच में हम लोग टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे. आपका जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उतना मैं आपको अच्छा सिखा पाऊंगा. दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकेंड कंडीशन, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे यस और नो वाले क्वेश्चन है, तो उस वक्त आपको यस के लिए वाई लिखना है और एन के लिए नो के लिए एन लिखना है. ठीक है ना. उसके अलावा मैं शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा आपको कि रिप्लाई एज ए और बी, सी और डी, व्हाटएवर इट इज. ठीक है ना. तो ध्यान में रखो कि मुझे ये रिप्लाई एक्सपेक्टेड है, मैं आपसे रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं. सबको समझ में आ रहा है? पुट इट इन द चैट बॉक्स. इफ यू हैव अंडरस्टूड से यस. डोंट रेज योर हैंड, वैष्णवी. इफ यू हैव अंडरस्टूड से यस. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड से नो. एवरीबॉडी. ओके ओके, दैट्स गुड. और ये मैं सबसे चाहता हूँ. वी आर हैविंग अराउंड 40 पार्टिसिपेंट्स टुडे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि सारे 40 के 40 बच्चे पार्टिसिपेंट एक्टिवली करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वेरी लाइक द न्यू टॉपिक दैट वी कैन से, जिसके चलते आज मतलब दुनिया इतने लेवल पे पहुंची है. विदाउट दैट इट इज वेरी इम्पॉसिबल लाइक टू सर्वाइव नाउअडेज. सो शैल वी स्टार्ट नाउ? शैल वी स्टार्ट? इफ एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद मी, स्टार्ट करें हम लोग. ओके फाइन. तो आज का जो टॉपिक है उसको थोड़ा ध्यान से सुनो. आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में भी पढ़ा था, ये 12th में भी पढ़ा है. मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन लूंगा क्विकली. अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. सी, द नेम इटसेल्फ इज सेमी
कंडक्टर। ओके, मैं अगर इसको दो भाग में डिवाइड करूं, सो दिस इज कॉल्ड ए सेमी एंड देन कंडक्टर। ठीक है, सेमी का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट 50%। एंड कंडक्टर आपको मालूम है क्या है, any device or any component which can allow the current to pass through it। कोई भी एक कंपोनेंट अगर अपने आप में से करंट को पास करने के लिए हेल्प करता है तो हम लोग उसको कंडक्टर बोलते हैं, और जो करंट को रोक देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक है ना, तो यही टॉपिक का नाम सेमी इंसुलेटर भी हो सकता था। अगर ये सेमी कंडक्टर है तो मुझे बताओ ये आधा सेमी इंसुलेटर है कि नहीं? इंसुलेटर और कंडक्टर दो रहते ना, तो अगर मैं इसको नाम सेमी कंडक्टर दे सकता था तो आधा सेमी इंसुलेटर है कि नहीं? यस और नो? इज इट 50% इंसुलेटर ऑल्सो? अगर मैं नाम को देखूं तो सेमी कंडक्टर, सपोज 50% कंडक्टर है तो 50% क्या है? इज इट इंसुलेटर? राइट, बट वी नेवर नेम इट एज सेमी इंसुलेटर। इसको हम लोग सेमी इंसुलेटर नाम नहीं देते। क्यों 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 नहीं नाम देते? क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। हम लोगों को करंट पास करना है, हम लोग करंट रोकना नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि कितना करंट पास हुआ है। फॉर एग्जांपल जब आप फैन ऑन करते हो तो आप क्या कैलकुलेट करते हो, कितना करंट रोका गया कि कितना करंट मिला है? will you try to understand कि how much current is allowed और how much current is blocked, A और B? क्या आंसर होना चाहिए? फैन को कितना करंट मिल रहा है अलाउड, वो देखना है कि फैन को कितना करंट ब्लॉक किया, फैन ने कितना करंट ब्लॉक किया, वो आप मेजर करते कभी भी। क्या करते हैं आप लोग? अलाउड देखते ना कि कितना कंडक्टर फाइनली जा रहा है, मतलब कितना करंट फाइनली जा रहा है। सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन कंडक्टर प्रॉपर्टी, सो दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज सेमी कंडक्टर। तो पहला ये चीज ध्यान में रखना कि व्हाई इट इज नॉट सेमी इंसुलेटर। नाम हमने सेमी इंसुलेटर क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम लोग इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी पे बिलीव नहीं करते। जो नेगेटिव है उसको छोड़ दो, जो पॉजिटिव है उस पर आगे बढ़ो। पॉजिटिव क्या है कि कितना करंट फ्लो होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कितना एम्पियर करंट जा रहा है, राइट, कितना एम्पियर करंट वो ले सकता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज सेमी कंडक्टर। ओके, सो विद दिस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर, आई एम शशिकांत दिपरगी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडे अ वेरी डायनामिक टॉपिक। बहुत डायनामिक टॉपिक है ये, इसके लिए मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जितना इसको समझने की कोशिश करोगे उतना आपको मजा आएगा। और डे टू डे लाइफ में आज सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। आज आपके ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थे उसमें से सारे डिवाइसेस जो भी उसको कंट्रोल करता है सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इसको इनडायरेक्टली क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिप्लेस कर दिया। क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन स्टडी करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आप कुछ भी करो, आप मेडिकल फील्ड में जाओ, वहां पे आपने ईसीजी ईईजी देखा होगा, बरोबर है, जो ऐसे लगाते हैं सब जगह और चेक करते हैं डॉक्टर लोग। ठीक है ना, उसके बिना उनका चलता नहीं। आज ब्लड प्रेशर मशीन आपका सब ऑटोमेटिक बन चुका है। आज आपका शुगर लेवल सब इलेक्ट्रॉनिक बन चुका है। आज आपका टेम्परेचर, जो पहले हम लोग थर्मामीटर रखते थे मुंह में, वो भी आज क्या बन गया है? इलेक्ट्रॉनिकली बन चुका है। आपका मोबाइल सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक है, आपका टीवी इलेक्ट्रॉनिक है, आपका गाड़ी का स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक है कि मैकेनिकल है? आज इज इट इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल? कैसा है, ई और एम? आज आपकी गाड़ी का जो स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट करते हो आप लोग, वो इलेक्ट्रॉनिक है कि मैकेनिकल है? ई और एम, कम ऑन क्विकली एवरीबॉडी। इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट है कि मैकेनिकल स्टार्ट है? मैकेनिकल स्टार्ट मतलब आप लोग किक करके करते थे। आज कैसा है, मतलब सब गाड़ियों में देखो, आप कारों में भी बटन आ गए, अभी बटन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बाइक में हम लोग आजकल बटन यूज कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट है मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां पे ये है ही, इसके बिना नहीं चलने वाला है। वहां पे ये है मतलब है, सेमीकंडक्टर है मतलब उसको यूज करना ही है आपको। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के कोई भी डिवाइसेस में से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। आपके चार्जर में इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके फैन के रेगुलेटर में इलेक्ट्रॉनिक्स है, आजकल आपके घर में मिक्सी में, आजकल जो आप मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हो घर में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है। किसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है? सब में इलेक्ट्रॉनिक्स है। जो तो जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अवेलेबल है। ऑलरेडी आपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस देखे, जैसे डायोड्स है, ट्रांजिस्टर है, या कुछ तो देखा होगा। ठीक है ना, तो उसमें से हम लोग जो सबसे पहला सीखने जा रहे हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है ना, पीएन जंक्शन डायोड आपको मालूम है, हम लोग डायोड ऐसा दिखाते हैं, वेयर वन साइड इज एनोड, द अदर साइड इज कैथोड। इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव। मैं डायोड के इंट्रोडक्शन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका 11th के चैप्टर में मतलब ऑलरेडी एडी शिंदे सर ने लिया हुआ है। ठीक है ना, मेरा काम क्या है उससे आगे बढ़ना, कि उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज कन्वर्जन। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन किसका? पीएन जंक्शन डायोड का।
अब AC टू DC कन्वर्जन क्यों सर, क्या जरूरत है उसकी? तो मुझे बताओ, आपके घर में जो सप्लाई आता है वो AC है कि DC है, जो आपको अपने प्लग से मिलता है, सॉकेट से मिलता है, सॉरी, जो आपको अपने सॉकेट से मिलता है, जो आपने घर पे लगाया, जहाँ पे 3 पिन आप प्लग या फिर 2 पिन प्लग डालते हो, वो कैसा है, AC है कि DC है? इज इट AC और DC? मैं वो पूछ रहा हूँ जो आप डायरेक्ट वायर से, जो बाहर घर के बाहर जो वायर्स घूम रहे हैं वहां से जो आप अपने घर को कनेक्शन लेते हो, वो AC है कि DC है? जो घर के बाहर वायर भाग रहे हैं, मालूम है क्या आपको? घर के बाहर आपने देखे होंगे मोटे मोटे वायर रहते हैं, वो जब अपने घर पे लेते हैं मुझसे कनेक्शन, वो AC है कि DC है? मोस्ट ऑफ यू आर रिप्लाइंग DC. एक्चुअली इट इज रॉन्ग, DC नहीं है वो, कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट है. वो करंट आपका ऐसा आता है, अल्टरनेटिंग करंट है. वो कैसा करंट है एवरीबॉडी? पहला चीज, जो आपके घर में सप्लाई आता है, जो MACB से जो आप सप्लाई लेते हो, वो क्या है, दैट इज एक्चुअली AC, नॉट DC. AC हम कभी पास नहीं करते. आपके खेतों में भी जो सिग्नल आते हैं वो कैसे है, जो करंट आता है वो कैसा है, AC है. आपके घर में जो सिग्नल आता है, जो करंट आता है, वो कैसा है, AC है. ठीक है ना? फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, DC में कन्वर्ट करते हैं. कैसे कि क्या करते हैं हम लोग उसको DC में कन्वर्ट. DC में क्यों कन्वर्ट करना है, मुझे बताओ. आपका मोबाइल का जो चार्जर है या जो मोबाइल है आपका, वो मतलब बैटरी पे चलता है कि मतलब डायरेक्ट करंट के ऊपर चलता है, जो आपको प्लग से मिल रहा है? आप उसको लेके बात करते कि आप बैटरी के ऊपर काम करते? आपका मोबाइल जो स्टार्ट होता है वो बैटरी के ऊपर स्टार्ट होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर स्टार्ट होता है? यू यूज बैटरी, राइट? वोल्टेज तो लगने वाला है सिद्धि विनायक, वोल्टेज तो सब जगह लगने वाला है, लेकिन आप क्या यूज करते हैं? उसके अंदर बैटरी डाला है, सेल डाला है कहीं ना कहीं. तो अब मैं AC को तो डायरेक्ट बैटरी को दे नहीं सकता, AC बहुत बड़ा है और बैटरी तो बहुत छोटा है. अगर मैं दूंगा तो जल जाएगा, इट विल बर्न आउट. बरोबर है, क्योंकि आपके घर पे जो सप्लाई आता है वो 230 वोल्ट है, और आपके बैटरी को जो जो चाहिए वो 5 वोल्ट DC है, और ये 230 वोल्ट AC है. जो आपके सप्लाई पे आ रहा है ना, यहाँ से जो आप लेते हो, जो प्लग से लेते हो ना आप लोग, सॉकेट से लेते हो, वो कितना है, 230 वोल्ट DC है. और जो आपका USB केबल है जो देता है आउटपुट, जिसको आप अपने मोबाइल को लगाते हो, ठीक है ना, वो क्या है, वो क्या है, DC है. तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये कन्वर्जन करना पड़ता है. किससे, क्या कन्वर्जन करना पड़ता है बेटा, AC टू DC. करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यस और नो? शैल वी रिक्वायर दिस और नॉट, कि 230 वोल्ट को हमें 5 वोल्ट या 10 वोल्ट या 15 वोल्ट, जो भी हमारे घर पे लगता है, जिस डिवाइस को जैसा लगता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. आपका सेटअप बॉक्स है, टीवी का सेटअप बॉक्स टीवी का, उसको भी 10 से 12 वोल्ट लगता है, कभी कभी 5 वोल्ट का लगता है, तो आप कन्वर्ट करते हो, अडेप्टर लगाते कि नहीं उसको, ठीक है ना, तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ता है. तो हर जगह अभी हमें क्या है कि AC टू DC कन्वर्जन हमें रिक्वायर्ड है. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, AC टू DC कन्वर्जन. मेरे घर पे सर सबसे ज्यादा AC टू DC कन्वर्जन लगता है. तो इसलिए हमने क्या किया है कि PN जंक्शन को यूज करके रेक्टिफायर बना है, जिसका काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ रेक्टिफायर, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है. रेक्टिफायर इज यूज्ड फॉर AC टू DC कन्वर्जन, DC टू AC कन्वर्जन, AC टू AC कन्वर्जन, DC टू DC कन्वर्जन. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देखो, AC टू DC कन्वर्जन, DC टू AC कन्वर्जन, AC टू AC कन्वर्जन, एंड देन DC टू DC कन्वर्जन. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट शैल बी योर आंसर? ABCD में से कौन सा आंसर होना चाहिए, विच आंसर शुड बी देयर? क्या कन्वर्ट करता है आपका रेक्टिफायर, व्हाई द रेक्टिफायर इज यूज्ड? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपका? सी, सो इजी, बहुत इजी है. डायोड किस लिए यूज होता है, डायोड इज यूज्ड फ्रॉम टू कन्वर्ट फ्रॉम AC टू DC, AC टू DC. तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? पहला समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, वेरी इजी, यस और नो? एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड इट, गुड गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो हम बाद में भी देखेंगे MCQ में, बट यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ पहले. इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, आप ध्यान से देखो. अभी जो मैंने दिखा है ना सिंबल, ये सिंबल देखो, यहाँ पे ध्यान दो, दिख रहा है सिंबल, ये सिंबल दिख रहा है क्या, ठीक है. ये सिंबल, ये एक्चुअली एरो मार्क है. क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट एरो मार्क. एरो मार्क मालूम है ना आपको, जो हम ऐसा दिखाते हैं, ऐसा एरो मार्क, तो ये एरो मार्क ही है, ठीक है ना. अब ये एरो मार्क क्या बताता है कि करंट आपका यहां से यहां पे ही फ्लो हो सकता है. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो, मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं.
I'll draw it here. तो जो आपका जो करंट है ना, क्या होगा, कहां से कहां पे फ्लो होगा बोलो मुझे, यहां से यहां पे फ्लो होगा। एरो मार्क जो दिखा रहा है देखो, एरो मार्क इज सेइंग करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, और इस साइड पे मेरा डायोड कभी भी करंट अलाउ नहीं करता है। समझ में आ गया? डायोड की प्रॉपर्टी क्या है, वो एक ही डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है। डायोड की प्रॉपर्टी क्या है, वो एक ही डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन। कहां से, जिस साइड एनोड रहेगा, जिस साइड कैथोड रहेगा, एनोड से कैथोड की तरफ, दिस इज के एक्चुअली। एनोड टू कैथोड वो आपको क्या करेगा, करंट पास करेगा, बट कैथोड टू एनोड करंट पास नहीं करेगा। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? एरो मार्क से समझ में आ गया आपको? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस कि डायोड ऑलवेज अलाउ करंट टू पास फ्रॉम वेयर टू वेयर? सेकेंड क्वेश्चन, वेयर टू वेयर? एनोड टू कैथोड। तो मैं अगर आपको ऐसा ऑप्शन दूं, ए टू के टू ए, ब्लॉक्स द करंट ऑलवेज और अलाउज इन बोथ डायरेक्शन, अलाउज इन बोथ डायरेक्शन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शैल बी योर आंसर? ए बी सी डी। डायोड अलाउज करंट टू फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड, या फिर वो अलाउ ही नहीं करेगा, या कोई भी डायरेक्शन में अलाउ करेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि डायोड कैन अलाउ ओनली द करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव पे करंट वो अलाउ नहीं करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव वो कभी भी करंट अलाउ नहीं करेगा। कहां से कहां पे करेगा? वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर्स, वेरी गुड आंसर। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर आंसरिंग इट वेरी फाइन। बहुत अच्छा आंसर्स कर रहे हो आप लोग। सो दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है एमसीक्यू? दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है एमसीक्यू? डायोड में करंट कहां से कहां फ्लो होता है? तो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है और दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है, और वो कहां से कहां पे फ्लो करेगा? एनोड टू कैथोड। ये हम बाद में भी देखेंगे, एमसीक्यूज में भी मैंने ऑलरेडी दिए हुए, बट यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। तो आपको कैसे पहचानना है? सी द एरो मार्क ओनली। एरो मार्क बहुत सिंपल है। देखो एक चीज ध्यान में रखो, जब भी आप सीईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी एमसीक्यू देते हो तो आपको शॉर्टकट्स याद रखने पड़ेंगे। क्या याद रखने पड़ेंगे? शॉर्टकट्स। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दिस? व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दिस? जस्ट सी द एरो मार्क। एरो मार्क कहां से कहां दिखा रहा है? एनोड टू कैथोड। तो मेरा करंट कहां से कहां पे फ्लो होगा? एनोड टू कैथोड। दिस इज शॉर्टकट। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? देयर आर 48 पार्टिसिपेंट्स। जल्दी से रिप्लाई करो यस और नो। मुझे गिने चुने 8-10 लोगों के आंसर नहीं चाहिए, सबके आंसर चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। यहां तक समझ में आ गया सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ठीक है, ओके, दैट्स गुड। अब इसके आगे जो हम लोग जा रहे हैं, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कितने टाइप के ऐसे, मतलब कैसे मैं बना सकता हूँ रेक्टिफायर, कितने टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। तो देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर देखो, नाम देखो क्या है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? करेक्ट वे में लाना, कोई भी चीज को अपने जैसे, जैसा मुझे चाहिए वैसा बनाना। तो मुझे कैसा चाहिए था? डीसी, आ कैसा रहा है? एसी। सो दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज रेक्टिफायर। रेक्टिफाई मतलब जैसा मुझे चाहिए आउटपुट वैसा लेना। तो कितने टाइप के रेक्टिफायर्स है हमारे पास? दो टाइप के रेक्टिफायर्स है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? फुल वेव रेक्टिफायर। बहुत इजी है, मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताता हूं, डोंट टेक टेंशन, ठीक है ना, बहुत इजी है। अब रेक्टिफायर देखो क्या है, ज्यादा डायग्राम की तरफ ध्यान मत दो, डायग्राम को देख के टेंशन में मत आओ, वो डायग्राम मुझे दिखाना चाहिए इसलिए मैं दिखा रहा हूं। मैं आपको बहुत सिंपल सरल शब्दों में बताता हूं, उसको ध्यान में दो। ये जो डायोड है ये पॉजिटिव साइकिल को पास करेगा, नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर देगा। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो, पॉजिटिव साइकिल को पास करेगा, नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक करेगा। तो इनपुट क्या देखो, यहाँ पे एसी दिखा है मैंने, एसी दिखा है जिसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। इनपुट क्या दिखा है मैंने? एसी दिखा है, राइट, जिसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। ये पॉजिटिव साइड है, ये क्या है? नेगेटिव साइड। अब जब डायोड लिया मैंने, तो डायोड क्या करता है? पॉजिटिव को ही अलाउ करता है। देखो कौन सी साइकिल को अलाउ कर रहा है? कौन सी साइकिल को अलाउ कर रहा है? पॉजिटिव। और नेगेटिव साइकिल को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। नेगेटिव साइकिल को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। तो आउटपुट कैसा आएगा? देखो, ओनली पॉजिटिव साइड्स और द पॉजिटिव साइकिल विल बी अपीयरिंग ऑन द आउटपुट। नेगेटिव साइकिल को देखो उसने उड़ा दिया है, देयर इज नो नेगेटिव साइकिल हियर, नेगेटिव साइकिल ही नहीं है। ये इनपुट है जो मैंने यहाँ पे दिया और ये आउटपुट है जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो आउटपुट में मुझे कैसा दिखेगा? सिर्फ ये दिखेगा, ये वाला जो भाग है ना, नीचे वाला भाग, वो मुझे नहीं दिखेगा। अगर मैं 2 साइकिल लूं तो उसने क्या कर दिया? पहला पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव आपको दे दिया, नेगेटिव आपको क्या कर दिया?
ब्लॉक कर दिया, नेगेटिव क्या कर दिया आपको, ब्लॉक कर दिया। ये हो गया हाफ वेव, क्योंकि देखो आपको आउटपुट में कैसा मिल रहा है, आधा ही मिल रहा है, आधा ही मिल रहा है। आर यू गेटिंग हाफ ऑफ द वेव? हाफ ऑफ द वेव इज आउटपुट, यस और नो? पूरे वेव में से आपको आधा ही वेव आउटपुट मिल रहा है, तो मुझे नाम क्या देना चाहिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट्स इट। लेकिन ध्यान में रखो पॉजिटिव वेव ही मिलेगा, नो नेगेटिव वेव्स, ओनली पॉजिटिव वेव्स, ठीक है? पॉजिटिव वेव्स ही मिलेगा, नो नेगेटिव वेव्स, सो दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गया? सर्किट पे ध्यान मत दो, अभी सर्किट का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, एमसीक्यू में सर्किट का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या जरूरी है कि मेरा आउटपुट क्या आएगा, हाफ ऑफ द वेव। कौन से वेव आएंगे, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव के नेगेटिव कौन से वेव आएंगे आउटपुट में, पी और एन? क्विकली, पी और एन, everybody should answer it. 47 participants, पॉजिटिव और नेगेटिव? वेरी गुड, वेरी गुड। सो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव हम लोग उड़ा रहे हैं इसलिए हमने उसको हाफ वेव नाम दे दिया। अब फुल वेव रेक्टिफायर में देखो क्या है, अब फुल वेव रेक्टिफायर, अब मैं बताता हूं इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या है, देखो अभी ध्यान से देखो मैं क्या बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनो, रिपीट करूं? ओके राज, सी देखो ये जो डायोड है ना, ये क्या करता है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि टाइम कम है अपने पास, बट यहाँ पे ध्यान रखो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सिर्फ दिमाग में रखते जाओ या साइड पे लिखते जाओ। डायोड का काम क्या है, देखो डायोड विल ऑलवेज अलाउ पॉजिटिव हाफ साइकिल टू गो थ्रू इट और नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट क्या करता है, देखो ये सिर्फ जाने देगा पॉजिटिव साइकिल को, नेगेटिव साइकिल को आने नहीं देगा। नेगेटिव साइकिल आता है और पॉजिटिव साइकिल जाता है, तो आने वाले साइकिल को ये ब्लॉक कर रहा है। तो सिंपल डायोड का काम क्या है कि पॉजिटिव साइकिल को अलाउ करे और नेगेटिव साइकिल को क्या करे, ब्लॉक करे। तो क्या करता है, देखो इनपुट पे मेरे दोनों भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दिख रहा है क्या, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, बट आउटपुट में क्या दिख रहा है आपको, देखो ओनली पॉजिटिव। कहां पे, यहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव दिख रहा है। गॉट इट राज? तो कितना वेव आउटपुट में आ रहा है, एक वेव का आधा ही आ रहा है, आधा तो दिख ही नहीं रहा है, देयर इज नथिंग हियर, राइट राज? समझ में आ गया राज? सिर्फ पॉजिटिव पास कर रहा है, नेगेटिव को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया, हाफ, आधा, हाफ ऑफ द वेव इज पास, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इतना सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? ये कहां पे जाएगा आपके, देखो अब मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूं, ये कहां पे जाएगा आपका, ये वाले जो पॉइंट है ना, ये आपके जाएंगे प्लग को, जो आपके स्विच बोर्ड में है, ठीक है ना? और ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा, यहां से हम आउटपुट जो ले रहे हैं ना, ये वाला आउटपुट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट जो हम लेंगे ना, ये जाएगा आपके मोबाइल को, ठीक है ना? 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा मुझे, गॉट इट? तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, ऑलमोस्ट डीसी, और यहाँ पे इनपुट क्या दे रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट एसी। और डीसी क्यों, देखो एक ही साइड पे। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, एक बार ऐसा तो एक बार नीचे, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई तो एक डायरेक्शन में। तो ये देखो आपके जो आउटपुट है वो एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ। सारे करंट कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ दिख रहा है, नीचे की तरफ कुछ दिख रहा है क्या? तो इसलिए मैंने उसको नाम क्या दिया, डायरेक्ट करंट, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। गॉट इट एवरीबॉडी? गॉट इट एवरीबॉडी? डायरेक्ट करंट जो एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है एक बार देखो, एक बार ऐसा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, अल्टरनेट, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा। तो अल्टरनेट का मतलब होता है उल्टा सीधा करना। तो वो कहां पे, इनपुट में। और आउटपुट में क्या है, उल्टा तो गई, सिर्फ सीधा सीधा अवेलेबल है, इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया, डायरेक्ट करंट। आई होप दैट एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस। बट अभी यहाँ पे नुकसान क्या हो रहा है देखो, क्योंकि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। नुकसान क्या हो रहा है, मैं आपको दो वेव दे रहा हूँ, कौन से, ये भी दे रहा हूँ और ये भी दे रहा हूँ, और इसमें भी एनर्जी है, इस वेव में भी एनर्जी और इस वेव में भी एनर्जी है। और मैं क्या कर रहा हूँ, आधे वेव को तो मैं उड़ा रहा हूँ यार, आधे वेव को तो मैं उड़ा रहा हूँ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 20 रुपए दिए, उसमें से आप 10 ही रुपए यूटिलाइज कर रहे हो, तो 10 रुपए क्या कर रहे हैं आप, वेस्ट हो रहा है कि नहीं। अब आप 10 रुपए को क्या कर रहे हो, कचरे में फेंक रहे हो, चलेगा क्या? एज अ इंजीनियर, एज अ इंटेलिजेंट पीपल, आप लोगों को चलेगा क्या कि मैंने आपको 20 रुपए यूज करने के लिए दिए और आप 10 रुपए यूज कर रहे हो, 10 रुपए फेंक दे रहे हो, चलेगा क्या? यस और नो? वाई और एन, क्विकली, वाई और एन? नहीं चलेगा ना। कोई भी इंटेलिजेंट आदमी क्या बोलेगा, सर 20 रुपए दिए, मैं 20 रुपए यूटिलाइज करूंगा, 10 रुपए क्यों फेंक दूं मैं पानी में, मेरे को क्या करना है, क्या फायदा उसका, ठीक है ना? तो आपको वो 10 रुपए भी यूटिलाइज करने हैं,
तो वो 10 रुपए लेकिन नेगेटिव नहीं चलेगा, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो फिर वापस से क्या बन गया, अल्टरनेट हो गया ना। हाँ, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या कि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं, ऐसा सोच सकता हूँ क्या मैं, कैन आई थिंक लाइक दैट, कि जो नेगेटिव मेरा वेस्ट हो रहा है क्या मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एज अ इंजीनियर, एज अ मतलब टेक्निकल पीपल, यू शुड थिंक लाइक दैट, कि जो वेस्ट हो रहा है उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ क्या, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, यस और नो। जो ये नेगेटिव मेरा वेस्ट हो रहा था मैं इसको यूज करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन कैसे यूज करूंगा, पहले मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने कितने डायोड लगा दिए, अब मुझे दोनों को पास करना है तो मुझे 2 गेट लगाने पड़ेंगे, मुझे दोनों को पास करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 गेट लगाने पड़ेंगे, राइट। एक दोनों दोनों को पास करना है ना, तो एक की बजाय कितने डायोड लग गए, अभी मुझे कितने रास्ते चाहिए मुझे दोनों को पास करने के लिए, 1 और 2, 1 और 2 चाहिए ना, 2 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है क्या, डायोड 2 क्या करेगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, डायोड 2 वो जो नेगेटिव वेवफॉर्म था ना, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके भेज देगा बाहर। तो देखो ये डायोड 1 का आउटपुट है और ये किसका आउटपुट है, डायोड 2 का आउटपुट है, दिख रहा है क्या। डायोड 1 क्या कर रहा है, पॉजिटिव साइकिल को पास कर रहा है, डायोड 2 क्या कर रहा है, देखो नेगेटिव को पॉजिटिव बना के पास कर रहा है, इतना ध्यान में रखो। डायोड 2 का काम क्या है, नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव बना के पास करेगा। वो कैसे करेगा वो एक्सप्लेनेशन अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान में रखो कि 2 डायोड में से डायोड 1 जो है दैट विल ऑलवेज मेक द पॉजिटिव साइकिल टू पास एंड डायोड 2 मेक द नेगेटिव साइकिल टू पास, लेकिन वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। तो आपको दोनों भी मिल रहे हैं, देखो अभी डायोड 1 से ये मिल रहा है, डायोड 2 से ये मिल रहा है, तो आपके आउटपुट में दोनों भी दिख रहे हैं, आपके आउटपुट में दोनों भी दिख रहे हैं, यस और नो, दोनों साइकिल को आपको मिल रहा है, फुल मिल रहा है कि नहीं आपको, अभी फुल मिल रहा है कि नहीं, वेरी नाइस। तो फुल मिल रहा है, तो फुल मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फुल वेव रेक्टिफायर, देखो फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ पे मेरा फुल वेव काम में आ रहा है इसलिए मैंने क्या बोल दिया उसको, फुल वेव रेक्टिफायर। अब मुझे बताओ एफिशिएंसी समझते हो, काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता बताओ मुझे। अगर सपोज इसके काम करने की क्षमता 40.6 है तो इसके काम करने की क्षमता कितनी होगी, जो पूछ रहा आपको मुझे बताओ, काम करने की क्षमता कितना काम कर सकता है। अगर ये सपोज 40% काम करता है तो फुल वेव रेक्टिफायर कितने टक्के काम करना चाहिए, अगर ये 40.6% काम कर रहा है तो फुल वेव रेक्टिफायर कितने टक्के काम करना चाहिए, जल्दी से आंसर दो, डबल ऑफ दैट, वेरी नाइस। अगर 40 है तो 80, अगर 40.6 है तो कितना हो जाएगा, 81.2%, कितना हो जाएगा 81 पॉइंट, मैंने 40 पूछा था इसलिए आप 80 दे रहे हो, वेरी नाइस। अगर 40.6 बोलता तो उसका डबल करो, कितना हो गया 81.2। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज, एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, ठीक है, वो हम एमसीक्यू में देखेंगे, मैं बाद में बताऊंगा आपको। बट अभी आपको ध्यान में आ गया कि दिस विल गिव यू 40.6 एंड दिस विल गिव यू 81.2, डबल, वो जितना इनपुट देगा ना उसका डबल। वो अगर अगर हाफ वेव रेक्टिफायर अगर बोलता है कि मैं 50% देता हूं तो फुल वेव रेक्टिफायर कितना देगा, 100%, कितना देगा 100%। बोलेगा आई रिपीट दैट, आई रिपीट दैट। मुझे बताओ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक और स्लाइड लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मुझे बताओ कोलेकर, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको आउटपुट, ऐसा दिख रहा है, ये किसका आउटपुट है, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, राइट। अब फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा है, ऐसा है, ये इसका डबल है कि नहीं, ये इसका डबल है कि नहीं, मुझे बोलो, इज इट डबल ऑफ द ओरिजिनल वन, हाफ वेव रेक्टिफायर का डबल है कि नहीं। ये अगर सपोज यहाँ पे 3 साइकिल दिख रहे तो यहाँ पे कितने दिखने चाहिए आपको, 6 साइकिल्स दिख रहे, 6 साइकिल्स दिख रहे। तो अगर ये मेरा सपोज 40% काम करता है 40.6, तो ये कितना काम करेगा, यहाँ पे डबल आ रहा है ना सब कुछ, तो कितना काम करेगा, उसका डबल काम करेगा कि नहीं, यस यस कोलेगर, डबल काम करेगा कि नहीं। तो 40.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आता है, 81.2%, दैट्स इट। समझ में आ गया अभी। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की, देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, परसेंटेज मतलब क्या आ गया, एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता हमेशा कितना रहेगा, डबल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना रहेगा, कभी भी डबल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इज इट क्लियर नाउ कोलेकर,
समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? यस, गुड। कोई भी डाउट रहे तो पूछो, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो वी हैव सीन द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ध्यान में दो। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड रहता है। किससे? हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको डायरेक्ट आंसर देना है, तब मैं समझाऊंगा नहीं, मैं आपसे डायरेक्ट आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है और ये किसका है? फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। फ्रीक्वेंसी समझते हो? फ्रीक्वेंसी सब लोग समझते हो? यस और नो? जल्दी से बोलो ताकि मैं समझा के फिर आगे बढ़ूंगा। फ्रीक्वेंसी समझते हो सब लोग? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर सेकेंड, या वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग इनपुट देखेंगे और उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे कि कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये आपका एक साइकिल है, ये आपका क्या है? एक साइकिल है। ये आपका क्या है? एक साइकिल है, ठीक है। ध्यान से देखो जो मैं बोल रहा हूं। तो ये आपका एक साइकिल है, यहाँ पे एक साइकिल आ गया, यहाँ पे एक साइकिल आ गया। अब मुझे बताओ कि इनपुट का जो साइकिल का टाइम है और जो आउटपुट के साइकिल का टाइम है वो सेम है हाफ वेव रेक्टिफायर में। अगर सपोज इसको एक वेव कंप्लीट करने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो इसको भी एक वेव कंप्लीट करने में कितने मिनट लग रहे हैं? 2 ही मिनट लग रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही आ रहा है। यस और नो? यस और नो? टाइम टेकन बाय हाफ वेव रेक्टिफायर टू कंप्लीट वन साइकिल इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय फुल वेव रेक्टिफायर टू कंप्लीट वन साइकिल। सॉरी, द आउटपुट इज वन साइकिल। इनपुट को अगर 2 सेकंड लग रहे हैं तो इसको भी कितने लग रहे हैं वापस से वही सिग्नल आने के लिए? देखो ये वापस से कब आ रहा है? 2 सेकंड के बाद ही आ रहा है ना? यस और नो? तो इसका मतलब इनपुट की फ्रीक्वेंसी, ये इनपुट है आपका, जो इनपुट दे रहा हूं ना मैं, कहां पे दे रहा हूं? देखो यहाँ पे, ये वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। यस और नो? इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, आनी चाहिए कि नहीं? वापस से ड्रॉ करता हूं, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू में पूछा जाता ही है, हो सकता है पूछा भी जाए। ये प्रेडिक्शन है मेरा कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो ये आपका साइकिल है, ठीक है ना। आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा आ रहा है? देखो ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो इसने जितना टाइम लिया एक वेव कंप्लीट करने के लिए, सपोज 2 सेकंड लिया, तो ये कितना लेगा भाई टाइम? टेल मी, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कितना टाइम लेगा? अगर इनपुट 2 सेकंड ले रहा है तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कितना ले रहा है? यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है वापस से रिपीट होने के लिए? देखो यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो कितना टाइम ले रहा है एवरीबॉडी? 2 सेकंड। 2 सेकंड मतलब टाइम पीरियड दोनों का सेम हो गया। T1 एंड T2 आर इक्वल। टाइम पीरियड ऑफ T1 एंड T2 दोनों का टाइम सेम निकल गया, टाइम सेम निकल गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? 1/T1 F1। F2 क्या रहेगा इसका? 1/T2। बट अगर टाइम पीरियड सेम है दोनों का भी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि F1 इक्वल टू F2। यस और नो? F1 इक्वल टू F2, यस और नो? क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का कैलकुलेशन भी सेम है। यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, तो कितना मिलेगा मुझे? 0.5 मिलेगा दोनों तरफ, तो बोथ आर सेम। तो इसका मतलब इनपुट की फ्रीक्वेंसी और हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट ऑफ HWR। HWR का मतलब क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों का सेम रहेगा। अगर मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट कितना रहेगा? इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो मुझे बताओ आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? व्हाट शैल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी? वेरी नाइस, वेरी नाइस, 50 हर्ट्ज। सी, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी मेरा 50 है और मुझे मालूम है कि आउटपुट भी इक्वल आता है, तो आउटपुट भी 50 रहेगा। अगर सपोज क्वेश्चन में उसने 60 दिया, तो आप कितना लिखोगे आउटपुट फ्रीक्वेंसी? किस पे टिक मार्क करोगे, 60 पे कि 50 पे? अगर इनपुट मैंने 60 दिया है तो if I have given the input as 60, then the output of the half wave rectifier frequency is 60 पे टिक मार्क करोगे, क्योंकि जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी आने वाला है। गॉट इट? गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल के लो, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल के लो सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके,
अब फुल वेव का देखते हैं हम लोग कैसा दिखता है। नाउ विल सी द फुल वेव रेक्टिफायर, वो कैसा दिखता है देखेंगे। ये इनपुट है, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर का मैं आउटपुट निकाल रहा हूं अभी। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, दोनों भी बाहर आते हैं, दोनों आउटपुट बाहर आते हैं कि नहीं, दोनों आउटपुट बाहर आते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये ऐसा है आउटपुट। अगर ये 2 सेकंड ले रहा है अपने आप को रिपीट करने के लिए, देखो ये रिपीट कहां पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और ये रिपीट कहां पे हो रहा है, देखो सिग्नल वापस से ऐसा दिख रहा है, सेम सिग्नल दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये 2 सेकंड ले रहा है ऊपर वाला, तो नीचे वाला कितने सेकंड लेगा सिग्नल को रिपीट करने के लिए? नीचे वाला कितना टाइम लेगा? ध्यान से देखो ऋतुजा, ऊपर वाला देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इमीडिएटली यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है। अगर ऊपर वाला 2 सेकंड लेगा तो नीचे वाला कितना लेगा? हाफ ऑफ दैट, हाफ ऑफ दैट, हाफ ऑफ दैट। समझ में आया कि नहीं है? तो नीचे वाला कितना लेगा? वेरी नाइस एवरीबॉडी। हाफ ऑफ दैट मतलब कितना लेगा? 1 सेकंड। गॉट इट ऋतुजा? 1 सेकंड लेगा, 1 सेकंड। अब देखो, अब हम लोग मतलब कैलकुलेशन करते हैं, फिर मुझे बताना आंसर क्या आएगा। F1 इक्वल टू क्या है? 1/T1। F2 इक्वल टू क्या है? 1/T2। ये आप लोगों को मालूम है। T1 कितना है? 2 सेकेंड। T2 कितना है? 1 सेकेंड। पुटअप करो, 1/2, ये कितना हो गया? 1/1। 1/2 कितना आ गया? 0.5। ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो मुझे बताओ कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी का कितना टाइम्स है? डबल है, हाफ है, या इक्वल टू है? कैसा है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज, इनपुट फ्रीक्वेंसी का कितना है? देखो डबल है, हाफ है, या 1/4 है, या 4 टाइम्स है? कैसा है? कितना दिख रहा है आपको? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। कितना दिख रहा है? डबल दिख रहा है कि नहीं? ये अगर 0.5 है, आधा है, ये अगर आधा है तो ये 1 है, तो डबल हुआ कि नहीं? डबल हुआ कि नहीं? यस, डबल हुआ कि नहीं? अब मुझे बताओ कि अगर मैं इनपुट को अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दूं, तो मेरा आउटपुट का फ्रीक्वेंसी कितना आना चाहिए? क्विकली, अगर मैं इनपुट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दूं, वैल्यू बोलो मुझे, आउटपुट का फ्रीक्वेंसी कितना आना चाहिए? सब लोग रिप्लाई करो, 10-15 बच्चे रिप्लाई करेंगे नहीं चलेगा, 45 स्टूडेंट्स आर देयर। अगर इनपुट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट का फ्रीक्वेंसी कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? वेरी नाइस। सी, सब लोग 100 रिप्लाई कर रहे हो। यही चाहिए बस, एमसीक्यू को इतना ही लगता है। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। श्रुति, आई विल रिपीट दैट, डोंट वरी। ध्यान दो श्रुति, वापस से मैं फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कब वो रिपीट कर रहे हैं, कब सेम सिग्नल वापस आ रहा है। यहाँ पे देखो, ये ऐसा सिग्नल आपको कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है श्रुति, यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा ही सिग्नल कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। यस और नो श्रुति? यस और नो? श्रुति क्विकली रिप्लाई करो क्योंकि टाइम बहुत कम है। हाँ, तो ये सपोज, और ये वाला सिग्नल कहां पे रिपीट हो रहा है? यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं ये वाला पूरा एक सिग्नल मानूं और इसको अगर 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है ना, और ये आपके अब नीचे वाला ग्राफ देखो, नीचे वाले ग्राफ में क्या देखो, ये जैसा आ रहा है वैसा कहां पे स्टार्ट हो रहा है? यहीं पे स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे स्टार्ट हो रहा है। तो इसके आधे पे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? हाफ ऑफ दैट, हाफ ऑफ दैट। हे जे इनपुट आहे तुमच्यासाठी, त्याचे हे अर्ध्यामध्ये चालू झालेत। मग अर्ध्यामध्ये चालू झालेत म्हणजे काय? इसका कितना आएगा? 1 सेकंड आएगा कि नहीं? अगर इसका 2 सेकंड है, देन इसका कितना होगा? 1 सेकंड। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। F1 क्या, F क्या होता है हमेशा? रिवर्स ऑफ टाइम, रिवर्स ऑफ टाइम। तो देखो इसका कितना आ गया? 1/T1। T1 कितना था? 2 सेकंड था। T2 कितना था? 1 सेकंड था। मग काय? A 1/2 और 1/1। 1/2 कितना देगा आपको आंसर? 0.5 देगा। 1/1 कितना देगा? 1 देगा। तो ये 0.5 का डबल हुआ कि नहीं? 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना? 1। तो डबल हुआ कि नहीं श्रुति? डबल हुआ कि नहीं फ्रीक्वेंसी? श्रुति क्विकली, डबल हुआ कि नहीं? ओके, अगर डबल हुआ है तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देतो की मैंने 50 दिया आपको, मी तुम्हाला 50 हर्ट्ज दिले इनपुट, मग आउटपुट काय असायला पाहिजे? आउटपुट काय असायला पाहिजे श्रुती? वेरी गुड। मी 60 दिला तुम्हाला, मैंने 60 दिया आपको इनपुट, 60, देन व्हाट शैल बी द आउटपुट? क्विकली एवरीबॉडी, बहुत फास्ट रिप्लाई करो, बहुत फास्ट रिप्लाई करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कितना आ गया भाई? 120 हर्ट्ज। दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है
हाफ वेव रेक्टिफायर इक्वल फुल वेव रेक्टिफायर डबल। तो लिख लो यहाँ पे, मैं आपको लिख के देता हूं, इनपुट फ्रीक्वेंसी फॉर हाफ, सॉरी, इनपुट फ्रीक्वेंसी का आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा फॉर फुल वेव रेक्टिफायर? फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट हमेशा कितना रहेगा? डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली, स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। इनपुट फ्रीक्वेंसी जितना रहेगा उसका आउटपुट डबल रहेगा। डू दैट क्विकली स्क्रीनशॉट निकालना है सबको, उसका डबल रहेगा। मैं अगर 1000 दूंगा, 1000 मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? वेरी नाइस 2000 आएगा। बस इतना सा ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। डबल करना है सर, और हाफ वेव में क्या करना है? सेम रखना है। हाफ वेव में डबल नहीं करना है, हाफ है वो तो सेम रखना है, फुल वेव में डबल करना है। वेरी नाइस, समझ में आ गया? बस इतना से ध्यान में रखना है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में। ज्यादा जितना मैं बोलते जा रहा हूं उतना ही ध्यान में रखना है। एग्जाम के टाइम पे जितनी जरूरत है उतनी पढ़ाई करनी चाहिए। साल भर दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, तब पढ़ना चाहिए, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हम लोग बोलते हैं ना, जितना जहां त्रास हो रहा है वहीं पे उसको मलम दो। सब जगह मलम देके फायदा नहीं है। मेरे को अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है ना, सिर दर्द, तो यहाँ पे मलम लगाने का है, पूरा लगा के फायदा नहीं है। अभी हमको यहाँ पे त्रास हो रहा है तो उतना ही मलम लगाना है, जितना मैंने बोला है उतना ही पढ़ना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस लिखे। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? बोथ द साइकिल्स का आउटपुट आता है, फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना है भाई? 81.2% है। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कितना है? उसका आधा है, 40.6 है, ठीक है ना? अब जो तीसरी चीज है, ये वाला जो एडवांटेज है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक हम लोग स्लाइड देखेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी ये डेफिनेशन के पीछे मत पड़ो, ये डेफिनेशन बाहर कर लो, एग्जाम के लिए लग जाएगा आपको, ये एग्जाम में लगने वाला है। डेफिनेशन याद रखो, रिपल फैक्टर इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है सिर्फ, ठीक है ना? ये फॉर्मूला कहां से है वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे समझना है वो मैं आपको बताऊंगा। रिपल फैक्टर का मतलब होता है, देखो, एक मेरा वेव ऐसा है और एक मेरा वेव ऐसा है, ठीक है? ध्यान दो, एक मेरा वेव ऐसा है, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से इसको कंपेयर करूं, एक स्ट्रेट लाइन से, तो मेरा नुकसान कहां पे ज्यादा हो रहा है? यहां पे ज्यादा हो रहा है, ये पूरा एरिया मेरा खराब हो रहा है, कि यहां पे हो रहा है? किसमें मेरा ज्यादा नुकसान हो रहा है आउटपुट में? पहले वाले सिग्नल में कि दूसरे वाले सिग्नल में? किसमें आउटपुट मेरा खराब हो रहा है? किसमें मेरे को रिपल्स ज्यादा मिल रहे हैं, किसमें मेरे को अड़चन ज्यादा मिल रही है, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? देखो, समझ जाओ, ये रिपल है बस। रिपल का मतलब होता है कितना वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ पे सर कम चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप बहुत कम है। अगर स्ट्रेट लाइन को कंपेयर करूं तो मुझे इतना ही भरना है सर, मुझे कितना भरना है उसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए? इतना भरना है। बट यहाँ पे कितना भरना है? देखो, इतना सब भरना पड़ेगा। तो इतना सब भरना है मतलब इसका रिपल क्या है? इसका ज्यादा है, और इसका रिपल क्या है? कम है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल लेस है या मोर है? जल्दी से बोलो मुझे, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल लेस है कि मोर है? रिपल खड्डे ज्यादा है, कहां पे ज्यादा है? फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल लेस है कि मोर है? फुल वेव में ज्यादा खड्डे दिख रहे हैं कि आपको हाफ वेव में ज्यादा खड्डे दिख रहे हैं? जहां पे खड्डे ज्यादा वो रिपल ज्यादा, जहां पे खड्डे कम वो रिपल लेस। तो कहां पे फुल वेव में लेस दिख रहे कि ज्यादा दिख रहे? जल्दी से रिप्लाई करो सब लोग। खड्डे कहां पे ज्यादा दिख रहे हैं आपको, हाफ वेव में कि फुल वेव में? वेरी नाइस। कहां पे दिख रहे? हाफ वेव में ज्यादा दिख रहे सर, फुल वेव में कम दिख रहे। तो ये लाइन देखो, समझो अभी, द रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज लेस देन दैट ऑफ इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर। एमसीक्यू क्वेश्चन, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा आपका। क्या? फुल वेव रेक्टिफायर इज हैविंग मोर देन, लेस देन, इक्वल टू, ऐसा पूछेगा। देखो, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर से कैसा रहेगा? इक्वल टू रहेगा, लेस देन रहेगा, मोर रहेगा, या नन ऑफ दिस रहेगा? तो क्या आंसर दोगे आप? फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर से एल होगा, एम होगा, एन होगा, कि इक्वल होगा, ई होगा? क्या होगा? दैट्स इट।
इतना ही समझना रहता है, सीईटी इतना ही बस, बाकी क्या नहीं है, सीईटी इतना ही है। सीईटी को दिमाग लगा के काम करना पड़ता है, यहाँ पे लेंदी काम नहीं चलता है, टाइम पास करते बैठना नहीं है, दिमाग लगाओ और फटाक से आंसर दो उसका। ये सीईटी है, जो कर लेगा वो आगे बढ़ गया। हर सब्जेक्ट में आपको ये यूज करना है शॉर्टकट टेक्निक्स। तो मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बता दिया। खड्डे देखने, हाफ वे में कितने खड्डे और फुल वे में कितने खड्डे, जिसमें ज्यादा खड्डे उसका मोर, जिसमें कम खड्डे उसका लेस, खत्म, इससे ज्यादा सोचना नहीं। डन, डन एवरीबॉडी। यहां तक किसी को डाउट है क्या? सब लोग समझ चुके हैं? आर यू हैप्पी विद दिस सेशन? आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सेशन? यस और नो एवरीबॉडी? किसी को डाउट है? क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 25% कंप्लीट कर चुके, हमारे स्लाइड्स का 25% या 50% कंप्लीट कर चुके, ऐसा मान के चलो। ओके, गुड गुड, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हाफ वेव रेक्टिफायर डीसी तो दे रहा है, लेकिन कैसा आउटपुट दे रहा है? ऐसा आउटपुट दे रहा है। कैसा आउटपुट दे रहा है? ऐसा आउटपुट दे रहा है। बट मेरे को जो लगता है डीसी आउटपुट को कैसा लगता है? स्ट्रेट लाइन वाला लगता है। कैसा लगता है? कैसा लगता है? स्ट्रेट लाइन वाला लगता है, ठीक है ना। 5 वोल्ट कांस्टेंट, 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट ही चाहिए, वो 5 पे जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर 5 पे जाए फिर नीचे आए, फिर 5 पे जाए नीचे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। 5 वोल्ट कैसा चाहिए मुझे? स्ट्रेट चाहिए। तो स्ट्रेट कौन करता है मैं आपको बताता हूँ। सर्किट एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, अभी टाइम कम है। इतना ध्यान में रखो कि जो स्ट्रेट करने का काम है वो कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? कैपेसिटर। कौन करता है ये काम? कौन करता है ये काम? कैपेसिटर। सी, ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना आपको, ऐसा ये दिख रहा है कि आपको इतना गैप है, ये गैप, ये जो भी दिख रहा है ना आपको, ये गैप, ये गैप को भरने का काम कौन करता है? अब गैप तो है, रिपल तो है, छोटा रहे बड़ा रहे, लेकिन रिपल तो है कि नहीं। अब मुझे गैप भरना है, तो ये गैप कौन भरेगा? कैपेसिटर भरेगा। कैपेसिटर कैसे भरेगा भाई? कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है कि नहीं? क्या करेगा? मतलब क्या किया मैंने, देखो अभी आपको, आपको लगने वाले 20 रुपए, कितने लगने वाले? ध्यान दो अभी सब लोग, आपको लगने वाले 20 रुपए, तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर हो, क्या आप हाफ वेव रेक्टिफायर हो, तो आपको लगने वाले 20 रुपए। बट आप 20 रुपए दे नहीं पा रहे सामने वाले को, क्योंकि आप उसमें से 10 रुपए वेस्ट कर रहे हो। कितना वेस्ट कर रहे हो? कितना वेस्ट कर रहे हो? 10 रुपए तो आपने फाड़ के फेंक दिए, बचे आपके पास 10 रुपए। बट आपको सामने वाले को कितना देना है? फुल देना है, 20 रुपए देना है। तो मैं आपके साथ क्या करूंगा, आपके एक दोस्त को खड़ा करूंगा और उसको एक्स्ट्रा 10 रुपए देके रखूंगा। वो आपका कौन है? कैपेसिटर है। कौन है वो आपका? कौन है वो आपका? कैपेसिटर है, जिसके पास 10 रुपए है। तो ये आपको उस वक्त मदद करेगा जब आपको कम पड़ रहा है, ये आपको उस वक्त मदद करेगा जब आपको क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है। तो कैपेसिटर का काम उतना है, जहां पे मेरा डायोड खराब कर रहा है ना जिस चीज को, कैपेसिटर उसमें एनर्जी ऐड करेगा। और कैसा देगा? ऑलमोस्ट, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, आउटपुट दिखा है, देखो उसने कैसा दिखा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। 100% कभी नहीं होगा, 100% कभी हो ही नहीं सकता है, नो नेवर, 100% कभी नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। अब इससे तो अच्छा दिख रहा है ना, कौन सा अच्छा है इसमें से? ये वाला अच्छा दिख रहा है कि 2 वाला अच्छा दिख रहा है? कौन सा अच्छा दिख रहा है ज्यादा? स्ट्रेट लाइन के, स्ट्रेट लाइन के ज्यादा करीब कौन है? 1 वाला है कि 2 वाला है? सही, देख के बता देते हो आप लोग कि 2 वाला है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे? कैपेसिटर, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर। कैपेसिटर इज कॉल्ड एज फिल्टर। कैपेसिटर का नाम क्या दिया हमने यहाँ पे? फिल्टर। फिल्टर, फिल्टर का मतलब मालूम है आपको? फिल्टर क्या करता है? जो चाहिए आपको, आप चाय फिल्टर करते कि नहीं? तो चाय पत्ती चलेगी क्या उसमें? फिल्टर करने के बाद नीचे जो आता है आपके पास चाय, उसमें चाय पत्ती चलेगी क्या? नहीं चलेगा ना। तो ये क्या करता है? चाय पत्ती को रोक देता है, जो चाहिए उतना ही बाहर, स्ट्रेट चाहिए ना उतना ही बाहर दिया उसने। आपको स्ट्रेट चाहिए ना, तो मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेट करके देता हूँ, तो इसलिए उसको नाम क्या दिया गया? फिल्टर। सो कैपेसिटर एक्ट्स एज व्हाट? कैपेसिटर एक्ट्स एज व्हाट? कैपेसिटर एक्ट्स एज व्हाट? फिल्टर। अपने इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में कैपेसिटर और हाफ वेव रेक्टिफायर में कैपेसिटर कैसा काम करेगा? फिल्टर जैसा काम करेगा। एमसी क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान में रखो, एमसीक्यू है, अंडरलाइन कर लो। कैपेसिटर एक्ट्स एज, कैपेसिटर सी एक्ट्स एज, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सी एक्ट्स एज, ये सारे क्वेश्चन मैंने दिए हुए आपको। सी एक्ट्स एज, आंसर देगा स्विच, आंसर देगा फिल्टर, आंसर देगा आपका रेक्टिफायर, और आंसर देगा नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। क्या क्या दिया उसने? ए दिया स्विच,
बी दिया फिल्टर, सी दिया रेक्टिफायर, डी दिया नन ऑफ द अबव। किस पे क्लिक करोगे, जल्दी बोलो, किस पे टिक मार्क करोगे? ABCD, किस पे टिक मार्क करोगे? बी पे। मिल गया आपको 1 मार्क। कितना सिंपल है देखो। कितना सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझो। फिल्टर क्या करने वाला है, वो जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना उसको स्ट्रेट करेगा, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया? फिल्टर। क्या नाम दे दिया? फिल्टर। क्या नाम दे दिया? फिल्टर। तो सीधा आपको फिल्टर पे टिक मार्क करना है, दैट्स इट। इतना सिंपल है। दिस इज हाउ द सिंपल सीईटी इज। इतना सिंपल है सीईटी। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है, दिमाग लगाना है। समझ में आ रहा है? हार्डवर्क, मेहनत वहां पे करो जहां लगती है, जहां पे नहीं लगती वहां पे दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने वाले को इसलिए ज्यादा रहता है हर चीज। क्यों? दिमाग इंपॉर्टेंट है। मेहनत वहां पे करो जहां पे लगती है, जहां पे उतरना है ना जब, तो मेहनत करना, बट अभी मेहनत नहीं करना है, अभी दिमाग लगाना है। ये टाइम दिमाग लगाने का है, ठीक है? एक ऐसा टाइम दिमाग लगाने का, तो दिमाग ही लगाओ। मेहनत तब करो जब पूरा साल बाकी था अपने पास, बट अभी टाइम नहीं है। अभी हमारे पास 15-20 दिन बाकी है, तो दिमाग लगाना सीखो। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। अब आपके पास कितने टाइप के पावर सप्लाई रहते हैं, मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लोग एमसीक्यू में जाएंगे। आपके पास कितने टाइप के पावर सप्लाई रहते हैं? आपके पास 2 टाइप के पावर सप्लाई रहते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटेड, और एक को हम लोग बोलते हैं अनरेगुलेटेड। क्या बोलते हैं हम लोग? अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुना मेरा क्वेश्चन क्या है। ये आपके घर पे सॉकेट है सबके पास, ये आपको मालूम है 230 वोल्ट देता है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसको 2 चीजों को लगाया। मैंने एक लगाया इसको टीवी को, और एक लगाया मैंने इसको फ्रिज को, ठीक है ना? तो दोनों को इनपुट 230 जाएगा, कि सर फ्रिज ज्यादा एनर्जी खींचता है तो इसको वोल्टेज ज्यादा लगेगा? कैसा जाएगा? दोनों को सेम जाएगा, 230 ही जाएगा, क्योंकि मैं एक ही जगह से दे रहा हूं। या फिर सर मेरा फ्रिज को तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो सर 230 से काम होने वाला नहीं है, मैं उसको कुछ अलग लूंगा, वैसा कुछ हो जाएगा। ऐसा होने वाला है क्या? और यहीं पे आपने क्या किया है, यहीं पे आपने क्या किया कि अपना मोबाइल भी लगाया। अब मोबाइल कम एनर्जी लेता है, तो मोबाइल को भी इनपुट पे 230 ही मिल रहा है कि कुछ अलग मिल रहा है? तीनों केस में कितना मिल रहा है? तीनों केस में कितना मिल रहा है? इन ऑल द 3 केसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज? कहीं पे चेंज हो रहा है, कहीं पे चेंज हो रहा है कि सर मैंने फ्रिज लगा दिया तो ज्यादा हो गया, मैंने मोबाइल लगा दिया तो कम हो गया, टीवी लगाया तो सर कुछ तो बीच में आ जाएगा। ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो ऐसे ऐसे सप्लाई को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। वो पावर सप्लाई जो अपना बिहेवियर, आगे आप कुछ भी लगाओ, आगे आप एरोप्लेन लगा दो, आप ट्रक लगा दो, कार लगा दो, कुछ भी लगा दो, मैं मेरा 230 ही दूंगा। जो अपने आप को चेंज नहीं करता है वो हो गया रेगुलेटेड। रेगुलेटेड नाम देखो कैसा दिया, रेगुलेटेड। जो अपने आप को चेंज नहीं करता है वो रेगुलेटेड, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। फॉर एग्जांपल अभी आप हो, आप अगर एग्जाम से एक दिन पहले टेंशन लेते हो तो आप अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई हो। कैसे हो आप? अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। अगर आप एग्जाम रहे, एग्जाम नहीं रहे, आप नॉर्मल बिहेव करते हो, तो आप रेगुलेटेड पावर सप्लाई। आप कैसे पावर सप्लाई हो? रेगुलेटेड। रेगुलेटेड मतलब जो अपने आप को चेंज नहीं करता है वो रेगुलेटेड है। जैसा हूं वैसा ही रहूंगा सर, सामने सामने तूफान आ जाए, शेर आ जाए या चूहा आ जाए, सर मैं जैसा वैसा ही रहूंगा। शेर आ गया और मैं डर गया तो अनरेगुलेटेड में चले जाओ आप लोग। कहां पे जाना है आपको? कहां पे जाना है आपको? अनरेगुलेटेड में। समझ में आ रहा है सबको? जो अपना वैल्यू 230 का 460 कर दे या 150 कर दे, तो वो कौन हो गया? वो कौन हो गया? जो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है वो कौन है? अनरेगुलेटेड है कि रेगुलेटेड है? यू है कि आर है? जो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन मैं क्या लगा रहा हूं सामने, जो अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज कर रहा है, वो अनरेगुलेटेड है कि रेगुलेटेड है? वो अनरेगुलेटेड है। और जो अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज नहीं करता है वो कैसा है? जो अपने आप को चेंज नहीं करता है वो कैसा है? वेरी नाइस। बस एक क्वेश्चन बन गया आपका। ये क्वेश्चन है एमसीक्यू का। ये एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। जो अपना आउटपुट इनपुट के हिसाब से चेंज नहीं करता है वो कौन हो गया? वो कौन हो गया? जो अपना सॉरी जो उतना ही वोल्टेज देगा, भले ही यहाँ पे आप कुछ भी लगाओ, वट एवर द लोड, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फैन, टीवी, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, जो भी हम लगाते हैं ना, मोटर, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? लोड। लोड अगर चेंज हो रहा है और मेरा अगर इसका आउटपुट, जो सॉकेट से जो आपको आउटपुट मिल रहा है, अगर ये चेंज हो गया तो मैं अनरेगुलेटेड हो गया। अगर मेरा लोड कुछ भी चेंज होने दो, कुछ भी होने दो, यहाँ पे आप कुछ भी लगाओ, लेकिन मेरा आउटपुट हमेशा 230 देगा, या जो भी उसका है आउटपुट। फॉर एग्जांपल मैंने 230 वाला लिया केस,
तो जो भी रहेगा वो क्या देगा, हमेशा 230 ही देगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलेटेड और इसको बोलेंगे हम लोग अनरेगुलेटेड। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक सबको समझ में आएगा? किसी को डाउट है? वाई और एन? क्विकली जल्दी से रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। ओके गुड। तो होप सो कि सबको समझ में आ गया। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान में रखो और साइड पे छोटा छोटा लिखते जाओ कहीं। तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, डोंट वरी। पीडीएफ आपको मिलना ही है, स्टडी मटेरियल आपको मिलना ही है, बट फिर भी खुद का लिखा हुआ अलग होता है। दूसरों का देख के करना और खुद का लिखा हुआ बहुत मैटर करता है, ठीक है? चलो अब हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे आपको सिर्फ आंसर देना है। एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज डैश ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना होता है? आधा होता है, डबल होता है, सेम होता है, नन ऑफ द अबव होता है? क्विकली रिप्लाई करो। कोई भी गलत आंसर देगा उसको मैं यहां से निकाल दूंगा अभी। ध्यान रखो, हर कोई आंसर देना चाहिए और परफेक्ट आंसर देना चाहिए, क्योंकि मैंने सिखाया आपको और मेरा सिखाया हुआ कभी भी गलत नहीं करेगा। क्या आना चाहिए? वेरी नाइस, ऑल ऑफ यू हैव गिवन बी एज द आंसर। सो बी इज द टिक मार्क किया, आपको एक मार्क मिल जाएंगे। दैट्स इट, जॉब इज डन। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, जॉब इज डन। सबको समझ में आ गया? Shall I go for the next question? Shall I go for the next question? Shall I go for the next question? Okay. So next question देखो. Ripple factor of full wave rectifier is dash of half wave rectifier. Full wave rectifier, ripple मतलब खड्डा। फुल वेव रेक्टिफायर का खड्डा हाफ वेव रेक्टिफायर से बड़ा होता है, छोटा होता है, या इक्वल टू होता है? मोर देन, लेस देन और इक्वल टू? आपको आंसर देना है ए, बी और सी। ए, बी और सी। वेरी गुड, वेरी गुड। एक ने भी दूसरा आंसर नहीं दिया, एक ने भी दूसरा, सबने सी दिए। दैट्स इट, डन। एक मार्क और मिल गया आपको, मिल गया आपको एक मार्क। एक मार्क आपकी जेब में गए। समझ में आया? आप मार्क कमा रहे मतलब पैसा कमा रहे हो, ध्यान में रखो। जो मार्क कमाते हो पैसा कमाते आगे जाके। तो रिपल फैक्टर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज लेस देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। योर जॉब इज डन। अभी देखो क्वेश्चन क्या है। पावर सप्लाई whose output is changed, चेंज हो रहा है, when the load is changed। अंडरलाइन करो उसको, अंडरलाइन करो। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। जिसका आउटपुट चेंज होता है जब उसका लोड, मतलब मैं फैन लगाओ, टीवी लगाओ, फ्रिज लगाओ, अगर वो अपने आप को चेंज कर रहा है तो रेगुलेटेड है कि अनरेगुलेटेड है? वो रेगुलेटेड है कि अनरेगुलेटेड है? ए और बी, ए और बी, बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता बेटा। जिन्होंने बोथ ए एंड बी आंसर दिए, दो लोगों ने आंसर दिए, नहीं हो सकता। कोई भी सप्लाई रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड दोनों भी नहीं होता है। तो कभी भी वो ऑप्शन पे टिक मार्क नहीं करना है। जब चेंज होता है तो वो कौन होता है? देखो, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन बी एज द आंसर, अनरेगुलेटेड होता है। अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं, द आउटपुट इज नॉट चेंज्ड, देखो यही क्वेश्चन में पूछ रहा, दूसरा पूछ रहा, अब मुझे आंसर बताओ क्या होगा। पावर सप्लाई हुज आउटपुट इज नॉट चेंज्ड व्हेन द लोड इज चेंज्ड इज कॉल्ड एज ए और बी। वेरी नाइस। यहीं पे दो क्वेश्चन घुमाए, देखो यहीं पे दो क्वेश्चन घुमाए। चेंज हो गया तो रेगुलेटेड, चेंज नहीं हुआ, सॉरी चेंज हो गया तो अनरेगुलेटेड, चेंज नहीं हुआ तो रेगुलेटेड। तो यहाँ पे ए तब आंसर आएगा जब मैं यहाँ पे नॉट दूंगा, जब यहाँ पे मैं नॉट दूंगा तब चेंज आ जाएगा। सी, वेरी ब्यूटीफुली यू हैव आंसर्ड। एमसीक्यू आप आंसर करना सीख गए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देना। अब ये ध्यान से सुनो जो क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर बहुत प्रॉपरली चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ, देखो यहाँ पे अंडरलाइन में क्या कर रहा हूं, फुल वेव रेक्टिफायर इज डैश ऑफ द इनपुट वेव। टाइम पीरियड कितना होता है फुल वेव रेक्टिफायर का? टाइम पीरियड पूछा है, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, टाइम पीरियड। डायग्राम डालो फटाक से। ये इनपुट, ये क्या है? आउटपुट। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम, जो ये टाइम लेता है। यहाँ पे अगर 2 सेकंड लिया है तो यहाँ पे रिपीटेशन के लिए उसने कितने सेकंड लिए? कितने सेकंड लिए यहाँ पे? यहाँ पे रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो कितने सेकंड पे लिए? 1 पे लिया। तो हाफ हुआ, डबल हुआ कि इक्वल हुआ? क्विकली ABCD। वेरी नाइस यार, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो यार। हाँ, खतरनाक आंसर देते तुम लोग। सब लोगों ने बी आंसर दिया है। योर जॉब इज डन, जीत गए तुम लोग, हो गया चैप्टर तुम्हारा। अभी तक मुझे एक भी गलत आंसर नहीं मिला आप लोगों से। 3 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, 3 क्या 4 क्वेश्चन पूछ लिए। इट इज ऑलवेज हाफ ऑफ दैट, इट इज ऑलवेज हाफ ऑफ दैट। और ये अगर फुल हाफ वेव रेक्टिफायर का पूछा होता तो, टाइम पीरियड फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा होता तो क्या बोलते? टाइम पीरियड फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा होता तो क्या बोलते? जल्दी से बोलो। टाइम पीरियड फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा होता तो क्या बोलते? कैसा होता है बेटा डबल? डबल कैसा होता है? देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ।
यहाँ पे अगर 2 सेकंड ले रहा है रिपीट होने के लिए, तो नीचे भी कितना ले रहा है, नीचे भी कितना ले रहा है, सेम ले रहा है ना, सेम ही तो ले रहा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट है, रिपीटिशन पे ध्यान दो। अगर ऊपर वाला ये इनपुट अगर 2 सेकंड ले रहा है, तो आउटपुट भी कितना ले रहा है भाई, 2 ही ले रहा है। तो सेम हुआ कि नहीं? तो आंसर पे किस पे टिक मार्क करोगे? ये क्वेश्चन अगर मैंने यहाँ पे हाफ वेव बोल दिया, तो किस पे टिक मार्क करोगे जल्दी से? ए बी सी, वेरी नाइस, सी पे टिक मार्क करोगे। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। तेजस्विनी, हाउ इट कैन नॉट बी नन ऑफ द अबव, है ना? दोनों का सेम आ रहा है ना, 2 and 2, तो दिया ना मैंने यहाँ पे इक्वल टू दिया ना तेजस्विनी? तो इक्वल टू पे टिक मार्क करना है या फिर सेम पे। अगर उसने सेम दिया होगा तो सेम, इक्वल दिया होगा तो इक्वल। समझ में आ गया? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन भी खत्म हो गए। मैं दूसरे टॉपिक में जा रहा हूँ, अभी अपने पास आधा घंटा है। आई एम गोइंग फॉर द सेकंड टॉपिक। आर यू हैप्पी विद द फर्स्ट टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक में आपको कुछ अच्छा लगा? आर यू हैप्पी विद दैट? आर यू फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट कि मैं सीईटी में अच्छा आंसर दे सकता हूँ? यस और नो? वेरी नाइस, गुड गुड। अब मैं जाता हूँ दूसरे में। ज्यादा टेंशन मत लो, मैं आपको जितना दिखा रहा हूँ उतना ही देखो। पूरा स्लाइड देखने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बोलता हूँ उतना ही देखो। स्लाइड पे मेरा काम है सारा इंफॉर्मेशन डालना, इसलिए मैंने डाला है। बट उसमें से क्या लेना है अंदर, समझ में आ रहा है? जितना मैं बोलूंगा उतना ही अंदर लेना है। हर चीज को देखते मत बैठो, ज्यादा दिमाग में सोचा रही है क्या दिखा दिया सर ने, ग्राफ इतना बड़ा। ग्राफ पे ध्यान ही मत दो, जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दो। ये सीईटी का टाइम है, जितना बोलूंगा उतना ध्यान देना है, हर चीज पे ध्यान नहीं देना है। फोटो डायोड, देखो नाम ही क्या बोलता है, फोटो डायोड। नाम क्या देखो, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम? फोटो डायोड। फोटो मींस ऑलवेज समथिंग दैट डील्स विद लाइट। जहां पे फोटो आ गया समझ जाना वहां पे लाइट काम कर रहा है। फोटो, फोटॉन्स, लाइट। जहां पे फोटो आ गया वो किस पे काम करेगा, किस पे काम करेगा? लाइट पे काम करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। फोटो मींस लाइट, तो ये लाइट के ऊपर काम करने वाला डिवाइस है। ये भी डायोड ही है। ये वाला जो डायोड था ये किस पे काम कर रहा था? ये वाला जो डायोड था किस पे काम कर रहा था? करंट पे काम कर रहा था। इसको इनपुट भी करंट है और आउटपुट भी करंट है। बट ये वाला जो डायोड है ना, जो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, फोटो डायोड दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है फोटो डायोड? ये किस पे काम करेगा? लाइट एनर्जी पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? लाइट एनर्जी पे। तो जितनी इसके ऊपर लाइट आएगी उतना करंट यहाँ पे फ्लो होगा। सिंपल सा लॉजिक है। जितना लाइट उसके ऊपर गिरेगा उतना करंट उसके अंदर से फ्लो होगा। तो ये क्या कर रहा है भाई? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट्स इट। फोटो डायोड का काम क्या है? लाइट उसमें डालो, वो उतना करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो क्या कर रहा है भाई? किसको कन्वर्ट कर रहा है? किसको कन्वर्ट कर रहा है? इट इज कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? इट इज कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहला क्या है? ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन। फोटो डायोड कन्वर्ट्स, फोटो डायोड्स कन्वर्ट्स, मैं आपको लिख रहा हूं, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ए बी सी डी। जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर होना चाहिए इसका? किसको कन्वर्ट करता है? लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, कि इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट करता है, कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करता है? किस में कन्वर्ट करता है? सी, दैट्स इट, जॉब इज डन। फोटो डायोड, नाम से देखो, फोटो, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट टू इलेक्ट्रिकल, दैट्स इट। इतना ही ध्यान में देना है, शॉर्टकट ध्यान में दो। फोटो, फोटो मींस फोटॉन्स, फोटॉन्स मींस लाइट, लाइट कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा मुझे फटाक से बताओ, इसको मैं कहां पे यूज कर सकता हूं? मैं इसको कहां पे यूज कर सकता हूं? ऐसा डिवाइस में कहां पे यूज कर सकता हूं? जल्दी से बताओ, कोई दिमाग लगाओ, कोई दिमाग लगाओ जल्दी से, कहां पे यूज कर सकता हूं? नॉट सोलर पैनल, सी, नॉट सोलर पैनल, वो हम बाद में देखेंगे। सोलर पैनल का काम नहीं है, वो फोटोवोल्टाइक सेल है, दैट इज अ फोटोवोल्टाइक सेल। इसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं? मुझे बताओ, आपने घर स्ट्रीट लाइट लगाया आपने? आपके जो रोड के आजू बाजू में खंबे रहते देखे आपने, जिसपे लाइट लगा रहता है? नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं बताता हूं आपको आंसर क्या है इसका। आपने लाइट के खंबे देखे जो रोड पे लगे रहते हैं? अब इसको ऑन ऑफ करना पड़ता है, इसको ऑन ऑफ करना पड़ता है आपको रोज। लाइट आ गया तो बंद कर दो, या सुबह हो गई तो बंद कर दो, रात हो गई तो आप ऑन कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे फोटो डायोड लगा दूं, तो यहाँ पे मैं अगर ये वाला फोटो डायोड उठा के यहाँ पे कहीं तो यूज कर लूं,
और उसका एक सर्किट बना के लगा दूं, तो लाइट के ऊपर ये लाइट को ऑन ऑफ कर, मतलब ये आपका स्ट्रीट लाइट ऑन ऑफ कर सकता है कि नहीं? अगर लाइट ज्यादा है तो ऑफ कर दो, लाइट का इनपुट अगर ये ज्यादा आ रहा है तो ऑफ कर दो, कम आ रहा है तो ऑन कर दो, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है कि नहीं? यस। तो ये कैसा काम कर रहा है? सेंसर के जैसा काम कर रहा है, ये लाइट को सेंस कर रहा है। फोटोडायोड इज सेंसिंग द लाइट, फोटोडायोड इज सेंसिंग द लाइट, यस और नो? किसको सेंस कर रहा है ये? सेंसर के जैसा काम कर रहा है कि नहीं? कि इनपुट अगर लाइट ज्यादा है तो सर उसको ऑफ कर दो, इनपुट अगर लाइट कम है तो उसको ऑन कर दो। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आइदर इट इज अ लाइट डिटेक्टर और फोटो डिटेक्टर या फोटो सेंसर। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फोटोडायोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोलर सेल, फोटो सेंसर, या आप बोल दो सेल, या नन ऑफ द अबव। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सोलर सेल, फोटो सेंसर, उसके बाद बोलेगा वो बैटरी, और उसके बाद बोलेगा नन ऑफ द अबव। तो आप किस पे टिक मार्क करोगे? एबीसीडी। फोटोडायोड इज, फोटोडायोड इज, वेरी नाइस। सब लोगों ने बी पे टिक मार किया है, आपका काम खत्म हो गया है। सेंसर है ये फोटोडायोड, ध्यान में रखो। फोटोडायोड क्या है? सेंसर है। क्या है? सेंसर। फोटोडायोड इज अ सेंसर, फोटो सेंसर, लाइट सेंसर, फोटो डिटेक्टर। ध्यान में रखो, स्लाइड आपको मिल जाएंगे, बाद में पढ़ लेना आराम से, ठीक है ना? बाकी किसी चीज पे ध्यान मत दो, बाकी ये ग्राफ सिर्फ दिखाने के लिए इस पे ध्यान मत दो, अभी मुझे कुछ लेना देना नहीं इस ग्राफ से, उस पर ध्यान मत दो। जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान में रखो। सो फोटोडायोड इज यूज्ड एज फोटो सेंसर और फोटो डिटेक्टर। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको ग्राफ पे ध्यान दूंगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पे ध्यान दो। अब मैं आपको बोलूंगा ग्राफ देखो, ठीक है? पहला अगर क्लियर हो गया, अब मैं आपको ग्राफ देखने के लिए बोल रहा हूं। देखो यहाँ पे वोल्टेज कैसा है? वोल्टेज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है वोल्टेज? माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। वोल्टेज कैसा है? एम और पी, माइनस और पॉजिटिव, या एन और पी, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, माइनस है तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस। अगर ये प्लस होता ना तो हम क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये आप लोगों ने सीखा ऑलरेडी, रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस। अगर ये माइनस है तो ये रिवर्स बायस्ड है, अगर ये प्लस है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है। तो अगर मेरा ये करंट वोल्टेज माइनस है तो मैं कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा हूँ? रिवर्स बायस्ड और फॉरवर्ड बायस्ड, आरबी और एफबी। कैसे ऑपरेट कर रहा हूं मैं इसको? आरबी और एफबी, अगर मेरा वोल्टेज नेगेटिव है, आरबी, ठीक है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में कौन से चार्ज कैरियर फ्लो होते हैं? माइनॉरिटी और मेजॉरिटी? एमएन और एमजे। रिवर्स बायस में कौन से फ्लो होते हैं? माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। देखो ध्यान में दो, इसको याद रखने का तरीका बताता हूं। देखो शॉर्टकट टेक्निक ध्यान में रखो। रिवर्स मतलब उल्टा, रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा मतलब कम। रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा मतलब क्या? कम। तो माइनॉरिटी उल्टा होता है कि मेजॉरिटी उल्टा होता है? क्या उल्टा होता है? माइनॉरिटी। तो यहाँ पे कौन से चार्ज कैरियर फ्लो होंगे? माइनॉरिटी। ध्यान में रखो, फोटोडायोड रिवर्स बायस में काम करता है। रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा मतलब कम, तो कम मतलब माइनॉरिटी। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, याद नहीं रखना है, लॉजिक लगाना है। क्या? रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या? उल्टा, उल्टा मतलब क्या? कम, कम मतलब कौन? माइनॉरिटी। दैट्स इट, दैट्स इट, जॉब इज डन। फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड सीधा, सीधा मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब क्या? माइनॉरिटी की मेजॉरिटी? ज्यादा मतलब मेजर की माइनर? मेजॉरिटी, एमजे। जॉब इज डन, खत्म। इतना ही समझाना है मुझे आपको। ये ग्राफ में सिर्फ इतना ही समझना है कि दिस डायोड इज यूटिलाइज्ड इन द रिवर्स बायस कंडीशन, दैट्स व्हाई इट इज माइनॉरिटी कैरियर्स व्हिच विल हेल्प यू आउट। फॉरवर्ड बायस होगा तो मेजॉरिटी, तो यहाँ पे तो फॉरवर्ड बायस नहीं है भाई, इसलिए यहाँ पे माइनॉरिटी है। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है मैंने, ध्यान से सुनो। ओनली माइनॉरिटी करंट फ्लोज, देखो ओनली माइनॉरिटी करंट फ्लोज एक्सेप्टेड, यस और नो? यस और नो? यस और नो? एक्सेप्टेड? ओके। सेकंड, रिवर्स करंट ऑफ द फोटोडायोड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट कितना पड़ेगा उसके ऊपर वो करंट भागेगा, यस और नो? जितना करंट ज्यादा पड़ेगा उतना करंट ज्यादा भागेगा, यस और नो? ओके। रिवर्स करंट ओनली डिपेंड्स ऑन द माइनॉरिटी कैरियर्स। देखो यहाँ पे क्या बोला है? माइनॉरिटी, ओनली माइनॉरिटी कैरियर्स। आप वोल्टेज कितना भी लगाओ, माइनॉरिटी कैरियर जितना रहेगा उतना ही करंट आएगा। तो किस पे डिपेंड करता है भाई? किस पे डिपेंड करता है? माइनॉरिटी कैरियर। अग्रीड? अग्रीड विद दिस? अग्रीड विद दिस? ओके। अब डार्क रेजिस्टेंस कौन है मैं आपको बताता हूं। डार्क रेजिस्टेंस कौन है?
ठीक है ना। डार्क रेजिस्टेंस कौन है या डार्क करंट कौन है? ये वो रेजिस्टेंस या वो करंट है जब मेरे पास लाइट नहीं है और तब मैं चेक कर रहा हूं कि कितना करंट फ्लो होगा। जब मेरे पास लाइट नहीं है तब मेरा करंट ज्यादा फ्लो होना चाहिए कि कम फ्लो होना चाहिए, लेस और मोर? जब मेरे पास लाइट नहीं, मैंने उसको ले जाके अंधेरे में रख दिया, तो मेरे पास करंट कितना फ्लो होना चाहिए, लेस और मोर? लेस और मोर? एवरीबॉडी एग्रीज विद लेस, वेरी नाइस, यस वेरी नाइस वेरी नाइस। सब लोगों ने बोला लेस फ्लो होना चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो मैं ग्राफ में जा रहा हूँ, ये कम दिख रहा है आपको, देखो कितना कम है करंट, करंट कम है, उसको हमने नाम क्या दे दिया, नाम क्या दे दिया हमने करंट को, डार्क करंट। यहाँ पे 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 तो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे करंट कितना है, देखो बहुत छोटा सा है, दिख रहा है आपको? एवरीबॉडी एग्रीड विद दिस? तो डार्क करंट हमेशा कितना रहेगा, मिनिमम। जो अंधेरे में हम लोग करंट निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डार्क करंट। जो अंधेरे में थोड़ा बहुत करंट दिखेगा ना आपको, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क करंट। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, डार्क करंट। और रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला मालूम है, व्हाट इज आर इक्वल टू वोल्टेज बाय आई। तो देखो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय डार्क करंट, खत्म खत्म, इट्स ओवर। सो डार्क करंट इज ऑलवेज मिनिमम, डार्क करंट इज ऑलवेज, डार्क करंट इज ऑलवेज मिनिमम। डार्क करंट क्या रहता है, कभी भी बिल्कुल कम रहता है। शैल वी स्टार्ट विद द एमसीक्यूज देन? ये टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू ले हम लोग, कर लोगे आंसर? शैल आई स्टार्ट विद द एमसीक्यूज एवरीबॉडी? शैल आई स्टार्ट विद द एमसीक्यूज? गुड। तो देखो, फोटोडायोड कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू लाइट, लाइट टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू लाइट। ए बी सी डी, किस पे टिक मार करोगे? वेरी गुड वेरी गुड, सबने सी आंसर दिया है, परफेक्ट परफेक्ट, जॉब इज डन, परफेक्ट, सी आंसर, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटोडायोड वर्क्स इन, कौन से बायसिंग में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, बोथ, नन ऑफ द अबव। फोटोडायोड किस में करता है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, किस में करता है भाई, रिवर्स बायस्ड। खुश हो गया भाई, जीत गए आप लोग, रिवर्स बायस में काम करते हैं। फोटोडायोड ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायस, काम खत्म हो गया अपना, डोंट वरी, हो गया। इसमें ये दो तीन ही क्वेश्चन है। डार्क रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट इज डैश प्रोपोर्शनल टू, डार्क रेजिस्टेंस आपने फॉर्मूला देखा, डार्क रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या था, V बाय I। तो ये करंट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि डिपेंड ही नहीं करता है, नन ऑफ द अबव। कैसा प्रोपोर्शनल है, कैसा प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब समझते हैं, कैसा प्रोपोर्शनल है, रिवर्स, डार्क रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। वेरी गुड वेरी गुड, याद रखना, आर डी इक्वल टू वी बाय, आर डी इक्वल टू वी बाय, डार्क रेजिस्टेंस आर डी, डी स्टैंड्स फॉर डार्क, डार्क रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू वी बाय आई। तो आई नीचे है, आई नीचे है तो इनवर्सली, ये अगर वोल्टेज को पूछा होता तो यहाँ पे अगर मैंने वोल्टेज किया होता तो क्या आंसर आता, वोल्टेज किया होता तो क्या आंसर आता, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की सॉरी करंट की बजाय मैं वोल्टेज पूछता तो क्या आंसर आता है, वेरी नाइस, डन, ए वुड बी द आंसर, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर रहा तो डायरेक्टली, ऊपर नीचे रहा तो इनवर्सली। देखो आई नीचे है, ठीक है, तो इनवर्सली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर? ये टॉपिक समझ में आ गया सबको? सिंपल सा है। फोटोडायोड क्या करता है, लाइट को सेंस करता है और करंट को फ्लो करता है। जितना ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट। किस पे डिपेंड करता है, माइनॉरिटी कैरियर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, माइनॉरिटी कैरियर पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, कौन से रीजन में इसको आप बायस करोगे, ऑलवेज रिवर्स बायस्ड, ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। डायरेक्ट करंट इज ऑलवेज सॉरी डार्क रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू V बाय I, डार्क रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू V बाय I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है, डार्क करंट आपको कब मिलेगा, when you will find the dark current, when the intensity, when the light is minimum, light is minimum, maximum, normal और none of the above। किस पे टिक मार्क करोगे, डार्क रेजिस्टेंस हम कब निकालते हैं, ए बी सी डी, मिनिमम रहेगा तब निकालेंगे, जब मेरा लाइट मिनिमम रहेगा तब निकालेंगे। नाम ही देखो डार्क है, डार्क है मतलब लाइट कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, खत्म। तो यू नीड टू टिक मार्क ऑन मिनिमम, व्हेन द लाइट इज मिनिमम देन वी कैलकुलेट डार्क रेजिस्टेंस और डार्क करंट। गॉट इट, गॉट इट, कर लोगे आप आंसर अभी। तो इसके एमसीक्यूज खत्म हो गए। तीसरा टॉपिक, और 3 टॉपिक बचे, मुझे एक 10 मिनट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपका, 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा जाएंगे
क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे मेरे मतलब चैप्टर बहुत बड़ा है, ये 1.5 घंटे का चैप्टर नहीं है, कम से कम 2 से 3 घंटे का चैप्टर है, बट मैं आपको 1 आवर 45 मिनट्स में खत्म करके दूंगा। सो मेक श्योर दैट कि आपकी तैयारी होनी चाहिए उतना बैठने की। एक 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठोगे तो एमसीक्यू में और मतलब 4 मार्क एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, 2 मार्क एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल सकता है, अब वो टाइम बताएगा। ठीक है, अपनी अपनी तैयारी रखो, अपनी तैयारी रखो और 15 मिनट बैठने के लिए। सोलर सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, अब हम लोग सोलर सेल पे आ गए। इसको दूसरा नाम क्या है? फोटो, पीवी, पीवी सेल बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? पीवी सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, पीवी सेल, फोटोवोल्टाइक सेल। अब यहाँ पे 2 तरीके के डिवाइसेस होते हैं, एक होता है फोटोथर्मल, एक होता है फोटोवोल्टाइक। दोनों का अंतर समझो, दोनों में सेम काम होते हैं, लेकिन कन्वर्जन देखो कैसा है। फोटोथर्मल, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। आपके घर के छत पे लगाया, देखो घर की छत पे क्या लगाया आपने, क्या लगाया आपने? फोटोवोल्टाइक सेल लगाया कि नहीं? सोलर सेल लगाया कि नहीं? क्या करता है? पानी गर्म करता है, क्या करता है? पानी गर्म करता है कि नहीं? तो क्या कन्वर्ट कर रहा है वो, क्या कन्वर्ट कर रहा है? सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी इनटू कौन सा, किसमें? हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल नहीं बेटा ऋतुजा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? गर्म कर रहा है ना, गर्म कर रहा है। सोलर सेल, सोलर कुकर क्या, अच्छा सोलर कुकर क्या करता है बोलो? सोलर कुकर क्या करता है? सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है कि करंट में कन्वर्ट करता है? किसमें कन्वर्ट करता है? सोलर कुकर, वो कांच वाला जो आप अपने आपने जब बचपन में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, कांच वाला पूरा ब्लैक करके हम लोग उसमें खाना रख के पकाने की कोशिश करते हैं। किसमें कन्वर्ट करता है? सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो उसको नाम क्या दिया देखो? फोटोथर्मल। फोटो मींस सोलर, थर्मल मींस गर्म, हीट। फोटोथर्मल, फोटो मींस लाइट और सोलर, किसमें कन्वर्ट करेगा? थर्मल में, तो उसको नाम क्या दे दिया? हीट एनर्जी। फोटोवोल्टाइक देखो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, फोटो सोलर एनर्जी टू वोल्टेज, वोल्टेज क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। वोल्टेज देखो नाम कैसा है? फोटोवोल्टाइक, वोल्टाइक मतलब वोल्टेज, वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस किसको कन्वर्ट करेगा? किसको कन्वर्ट करेगा? सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? फोटोथर्मल, फोटोथर्मल, थर्मल मतलब आपको कैसे याद रखना है? थर्मस, थर्मस गर्म रखता है कि नहीं? गर्म रखता है कि नहीं? याद देखो, फोटो इज ऑलवेज सोलर और लाइट, थर्मल, थर्मल का मतलब क्या हो गया? गर्म, थर्मस गर्म, इतना याद रखना है। तो सोलर एनर्जी टू हीट एनर्जी। फोटोवोल्टाइक, फोटो मीन सोलर, वोल्ट, वोल्ट आ गया तो वोल्टेज, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिकल, सो फोटोवोल्टाइक कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गॉट इट एवरीबॉडी? क्वेश्चन पे ध्यान देना, फोटोथर्मल पूछा है कि फोटोवोल्टाइक पूछा है? फोटोथर्मल पूछा है तो सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, सॉरी हीट एनर्जी। फोटोवोल्टाइक पूछा है तो सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल रहना आपको, ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते वक्त गड़बड़ नहीं करना है सीटी में, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ते हुए गड़बड़ नहीं करना है, भले आप 2 क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन जितने अटेम्प्ट कर रहे हो परफेक्ट करो। सब टिक मार करके बैठ मत जाओ गलत करके, भले ही मतलब 50 क्वेश्चन है तो 50 में से 30 ही अटेम्प्ट करो, लेकिन प्रॉपर करो, 100% करेक्ट होने चाहिए वो। तो क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से और फिर आंसर दो। और क्वेश्चन को कोई बायसिंग की जरूरत नहीं है, मतलब क्वेश्चन को हम सॉरी सोलर सेल को हम कभी भी बैटरी नहीं लगाते। आपने छत पे कभी बैटरी लगाया क्या? अपने जहां पे पानी गर्म होता है बैटरी लगाया कभी? बैटरी लगाया? कभी नहीं लगाया ना, क्योंकि उसका काम ही है सोलर को कन्वर्ट करना। फिर मैं अगर उसमें बैटरी लगाऊं तो फिर फायदा क्या है? तो इसको एक्सटर्नल बायसिंग, एक्सटर्नल बायसिंग मतलब क्या है? बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, नो बैटरी रिक्वायर्ड। सोलर सेल डजंट रिक्वायर बैटरी। आपकी सोलर घड़ी भी रहती है, उसमें आप बैटरी डालते हो क्या? नहीं डालते। सोलर कैलकुलेटर बैटरी डालते हो क्या? नहीं डालते। तो उसको एक्सटर्नल बायसिंग, एक्सटर्नल बायसिंग मतलब बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सोलर सेल, सोलर सेल क्लियर हो गया? उसमें 2 टाइप है, फोटोथर्मल, फोटोवोल्टाइक। फोटोथर्मल सोलर टू हीट एनर्जी, फोटोवोल्टाइक सोलर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये याद रखने वाली चीज है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना कि एनर्जी गैप, मैं अभी ये बता नहीं सकता, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा बैंड गैप जो होता है ना, बैंड गैप, बैंड गैप किसमें रहता है? आपका वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड गैप। ठीक है ना? ये बैंड गैप आपका सोलर सेल के लिए, वही आप मटेरियल यूज करोगे जिसका बैंड गैप कितना है? 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रख लो इसको, ये इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको याद ही रखना है आपको। कितना चाहिए भाई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका बैंड गैप इतना रहेगा उसको हम लोग सोलर सेल बना सकते हैं, उसको हम लोग सोलर सेल बना सकते हैं। कैसा होना चाहिए भाई उसका? जितना हो सकता है उतना लाइट एब्जॉर्ब करना चाहिए कि नहीं? तो उसका ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब लाइट, लाइट एब्जॉर्प्शन कैसा होना चाहिए उसका? हाई होना चाहिए कि नहीं? सोलर सेल का जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो, अगर वो कम ही लाइट लेगा तो कन्वर्ट क्या करेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सोलर सेल अगर कम लाइट लेगा तो कन्वर्ट क्या करेगा? तो उसका एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होना चाहिए? एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? हाई और लो? सोलर सेल का एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी शुड बी हाई और लो? एच और एल, जल्दी से, एच और एल, एच और एल हाई होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, हाई होना चाहिए। और ये कुछ कंपाउंड है जो आपको याद रखने में, स्लाइड दे दूंगा आपको, सिर्फ इसको याद रखो, क्योंकि ये देखो इन सबके इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से कहां तक है, देखो कहां से कहां तक है, देखो 1 से लेके 1.8 के बीच में, 1 से लेके 1.8 के बीच में है कि नहीं है? ठीक है ना? तो ये सारे जो कंपाउंड्स है या फिर जो भी इन्होंने एलॉयज बनाए हैं, ये सब सोलर सेल के लिए यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मटेरियल्स दैट वी कैन यूज फॉर सेल। ये आपको याद रखने हैं। कैसे कुछ चीजों को आपको याद ही रखना है तो उसको याद ही रखना है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये स्लाइड में याद रखना ज्यादा है, ये स्लाइड में से याद रखो कि सोलर सेल वही यूज करेंगे जिसका बैंड गैप 1.0 टू 1.8 रहेगा, और जो ये मटेरियल को बिलोंग करेंगे, SI, GS, CDT, CI, CU, IN, SE, तो इन्हीं को यूज करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि उसके मैंने आगे लिखे भी है उनके कितने कितने बैंड गैप कितना है, उसको ध्यान में रखो। और ये 1 से लेके 1.8 के बीच में, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। देन अब मैं एमसीक्यू पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी मुझे आंसर देना है। फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। फोटोवोल्टाइक है, ध्यान दो, ABCD, जल्दी से बताओ मुझे, ABCD, फोटोवोल्टाइक सेल। वेरी गुड, all of you have replied as C. Very nice, very nice. So solar to electrical energy, solar to electrical energy. Photothermal cell converts dash energy into dash energy. Photothermal cell converts dash energy into dash energy. Solar to heat, solar heat to solar, solar to electrical, none of the above. किसमें convert करेगा? Very nice, very nice. Everybody has given the A answer. Solar to heat energy, thermal, इस पे ध्यान देना है, important. यहाँ पे वोल्टेक पे ध्यान देना, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ दो, वोल्टेक पे ध्यान देना है। ठीक है? डन। सोलर सेल शैल हैव डैश इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डैश इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कैसा होना चाहिए सोलर सेल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? कम होना चाहिए, गुड होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, नन ऑफ द अबव? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हो तो कंडक्टिविटी अच्छी चाहिए ना, कम हो गया तो क्या इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करेगा? सिंपल सा लॉजिक है, दिमाग लगाओ बस, ये एमसीक्यू को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोलर सेल है तो अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होना चाहिए, तो गुड कंडक्टिविटी होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सोलर सेल का अगर कंडक्टिविटी कम हो गया तो वो एनर्जी क्या कन्वर्ट करेगा? कोई फायदा नहीं ना उसका। तो इसलिए दैट्स व्हाई, वेरी नाइस, एवरीबॉडी हैज गिवन बी आंसर, वेरी नाइस। ठीक है? अब सिर्फ 2 टॉपिक बचे, 5 और 5 मिनट में खत्म करेंगे। सिर्फ 2 टॉपिक बचे, ध्यान से सुनो, इसमें भी याद रखने वाली चीजें ज्यादा है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। देखो लाइट एमिट, एलईडी देखा सब लोगों ने, ये तो भी कॉमन हो चुका है, सबके पास है। एलईडी के बिना तो डीजे होता ही नहीं आपका, एलईडी नहीं रहा तो डीजे गया भाड़ में। हाँ, आजकल हम लोग गणपति करना बंद कर देते अगर एलईडी नहीं रहा तो। न्यू ईयर बंद हो गया, आपके घर में कोई फंक्शन ही नहीं होता एलईडी नहीं रहा तो। शादी आ गई, एलईडी लगा दो। तो एलईडी इतना इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, आपके मोबाइल से लेके एरोप्लेन तक एलईडी लगता है, स्पेसक्राफ्ट तक एलईडी लगता है, ध्यान में रखो। तो एलईडी इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज हो रहा है आजकल। तो उसका नाम क्या? लाइट एमिटिंग डायोड। देखो वापस से वो डायोड ही है, वापस से डायोड ही है, लेकिन कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? ये डायोड ही है, लेकिन कर क्या रहा है? क्या दे रहा है आपको? ये क्या दे रहा है आपको? आउटपुट, आउटपुट क्या दे रहा है? आउटपुट क्या दे रहा है? जल्दी से, एलईडी आपको आउटपुट क्या देता है? क्या देता है आपको? आउटपुट लाइट देता है कि नहीं? कलर कलर की लाइट देता है कि नहीं? अब बताओ मुझे, फोटो डिटेक्टर क्या कर रहा था? लाइट अंदर लेके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, लाइट अंदर ले रहा था और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। ये क्या कर रहा है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी। तो दोनों अपोजिट हुए कि नहीं? दोनों अपोजिट हुए क्या? एलईडी और फोटो डायोड दोनों अपोजिट हुए, क्रॉस हुए, दोनों काम उल्टा है कि नहीं? फोटो डायोड लाइट को लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। ये क्या कर रहा है? एलईडी करंट इलेक्ट्रिकल लेता है अंदर और क्या देता है आपको बाहर? लाइट देता है कि नहीं? तो देखो कैसा है, दोनों उल्टे हुए कि नहीं? दोनों उल्टे हुए कि नहीं? इतना ही ध्यान में रखना है आपको।
बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, फोटो डायोड एंड एलईडी आर और एक्ट एज सेम, अपोजिट या बोथ या नन ऑफ द अबव। तो आपको किसमें टिक मार्क करना है? बोथ आर एक्टिंग एज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ आपको सेम, अपोजिट, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि नन ऑफ द अबव, और चलो इसको ये एबीसी मान लेते हैं अभी फिलहाल। तो आप किस पे टिक मार्क करोगे? दे आर बिहेविंग अपोजिट, दैट इज बी इज द आंसर। खत्म। अब एक चीज ध्यान में रखो, कलर कैसे डिपेंड करता है? कलर कैसे डिपेंड करता है? तो एलईडी का जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो ना, तो कौन कौन से केमिकल, मतलब कौन कौन से मटेरियल यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको याद रखना है। रेड के लिए कौन सा कलर चाहिए? देखो रेड के लिए कौन है भाई? रेड के लिए दो टाइप के मटेरियल यूज कर सकते हो, GaAsP मतलब गैलियम आर्सेनेट फॉस्फोरस, और एल्यूमिनियम गैलियम एंड फॉस्फोरस। तो इसकी कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये दोनों में भी रेड मिल रहा है तो कैसे होगा? तो उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन आप कितना लोगे, उसके हिसाब से वो रेड कलर देगा। तो अभी आप उस पर ध्यान मत दो, ये आपका काम नहीं है, 12th में इतना हमको डिटेल में नहीं जाना है। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ये केमिकल, ये अगर मटेरियल में यूज करता हूं तो ये टाइप के मुझे कलर्स मिल सकते हैं। ये आपको याद रखना है, कोई और ऑप्शन नहीं, ये आपको याद रखना है। डन? ये आपको याद रखना है, कोई और ऑप्शन नहीं मेरे पास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब लाइट एमिट कैसे होता है मैं बताता हूँ। लाइट एमिट कैसे होता है मैं बताता हूँ। रिकॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा इससे पहले मैं यहीं पे बता देता हूँ कैसे एमिट होता है, मैं बताता हूँ लाइट कैसे आता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दो बहुत, अभी सब लोग ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो। ये चीज यहाँ पे सबको पेन दिख रहा है? सबको पेन दिख रहा है? यस और नो? सबको ये पेन दिख रहा है? सबको पेन दिख रहा है? ओके ठीक है। अब सपोज ये पेन को मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगाया, यहाँ पे क्या लगाया है? यहाँ पे क्या लगाया? इलास्टिक लगाया। क्या लगाया? इलास्टिक। अब मैं इसको खींच रहा हूं यहां तक, मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा? मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा? ये वापस अपनी जगह पे जाएगा, क्योंकि इलास्टिक लगा हुआ था इसको, ये वापस अपनी जगह पे जाएगा। यस और नो? इट शुड गो बैक टू इट्स ओन प्लेस। यस और नो? यस। ठीक है ना? अब ये पेन को आप इलेक्ट्रॉन मान लो, ये पेन को इलेक्ट्रॉन मान लो, और इसको आप होल मान लो, होल। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को खींच के कहीं दूर रख दिया, मैं छोड़ूंगा तो कहां पे जाएगा? ये वापस से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? एच पे जाएगा, होल पे जाएगा, कहां पे जाएगा? वेयर इट विल गो? होल। इट विल गो बैक टू द होल। डन? यहां तक समझ में आ गया? इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ये पहले अपनी जगह पे ही था, इसको मैंने ही यहां पे लेके आया, फिर मैं ही छोड़ रहा हूं, तो रिकंबाइन हुआ कि नहीं? पहले तो ये दोनों एक जगह पे थे ना, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ एक होल रहता ही है, पेयर रहता है। तो मैंने उसमें से क्या किया? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जबरदस्ती। अब ये जबरदस्ती बाहर रहना नहीं चाहता, ये कहां पे जाना चाहता है? वापस से अपनी जगह पे जाना चाहता है। तो जैसे मैं छोड़ूंगा ये अपनी जगह पे गया, तो मैं उसको रिकॉम्बिनेशन बोल सकता हूँ। क्या? रिकंबाइन हो रहा है सर, रिकंबाइन हो रहा है। ठीक है, अब मुझे दूसरा आंसर दो कि जब ये मैंने इसको वापस छोड़ा तो मेरे हाथ पे चोट लगती है? अगर इलास्टिक रहा तो मेरे हाथ पे चोट लगेगी यहाँ पे। विल आई फील द पेन और एनर्जी? मुझे थोड़ी एनर्जी मिल रही है, चोट लग रही है कि नहीं? तो एनर्जी मिल रही है कि नहीं? ठीक है ना? तो एनर्जी कौन से फॉर्म में लिबरेट हुई? चोट के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में लिबरेट हुई? मुझे पेन हो रहा है, एनर्जी इज लिबरेटेड। तो सेम हैपेंस हियर इन एलईडी। मैं आपको बताने के लिए इसके ऊपर 1 घंटा ले सकता हूं, बट अभी टाइम नहीं है। सेम बताने के लिए यहाँ पे क्या करता है एलईडी? जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने होल पे जाता है तो एनर्जी लिबरेट करता है। क्या करता है? एनर्जी लिबरेट करता है। कौन से फॉर्म में लिबरेट करता है? लाइट एनर्जी। दैट्स इट, दैट्स इट। तो क्या हुआ? एलईडी कैसे काम कर रहा है? किसके ऊपर काम कर रहा है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? LED works on the principle of recombination of electrons and holes. Everybody got it or not? जल्दी से मुझे यस रिप्लाई करो सबके सब, अगर समझ में आया। नहीं समझ में आया तो नो रिप्लाई करो। ओके, वेरी नाइस। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखो, लाइट इज एमिटेड इन एलईडी ड्यू टू, देखो यहाँ पे क्या आंसर है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड होल्स, नन ऑफ द अबव। व्हिच, क्या आंसर होना चाहिए आपका? जल्दी से, ऑल द स्टूडेंट शुड रिप्लाई। क्या आंसर होना चाहिए आपका? क्या आंसर होना चाहिए आपका? बी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, डन। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। दिस इज बीजेटी। बीजेटी मतलब ट्रांजिस्टर। बीजेटी मतलब कौन? बीजेटी मतलब कौन? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कितने टर्मिनल का होता है? 3 टर्मिनल का होता है। एक होता है एमिटर, एक होता है बेस, और दूसरा होता है कलेक्टर। एक होता है बेस, एमिटर और कलेक्टर।
ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एरो मार्क, जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही ध्यान दो, यहाँ पे मैंने एरो मार्क दिखा है, ये अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, ये गलत लिखा है नीचे, इस स्लाइड पे मत देखो, ये अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पीएनपी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएनपी, और ये बाहर की तरफ है तो इसको हम लोग बोलते हैं एनपीएन। तो याद कैसे रखना है, देखो मैं आपको बहुत इजी बताता हूँ, एन को आपको ऐसे पढ़ना है, पी इन पी, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पी इन पी, इन, अगर आपका एरो मार्क अंदर जा रहा है तो वो कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया, पीएनपी, अगर आपका एरो मार्क बाहर जा रहा है तो कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया, ऑब्वियसली उसका उल्टा। तो आपको एक ही याद रखना है, इन, एरो मार्क देखो इन दिख रहा है तो पी इन पी, याद कैसे रखोगे, शॉर्टकट क्या है, पी इन पी, इन मतलब अंदर, खत्म, एन मत बोलो, पी एन पी को आप पी इन पी बोलो, बस बोलते वक्त प्रोनाउंसिएशन चेंज करो थोड़ा सा, पी इन पी, पी एन पी नहीं, पी इन पी, तो पी इन पी बोलोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, इन वाला पी एन पी है तो आउट वाला क्या हो जाएगा, एनपीएन, खत्म, आउट वाला क्या हो जाएगा, एनपीएन। समझ में आ गया सिंबल, कभी नहीं भूलोगे, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस सिंबल, बहुत इजी है, पी इन पी, शॉर्टकट पी इन पी, ठीक है ना। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है, सिंपल सा 2 सेकंड में बताता हूँ, उसके हिसाब से करो। एमीटर और कलेक्टर ये दोनों बड़े रहते हैं, यहाँ पे बनाता हूँ वापस से ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, एमीटर और कलेक्टर दोनों बड़े रहते हैं, ठीक है, और बेस आपका छोटा रहता है, बेस आपका क्या रहता है, छोटा रहता है। तो देखो एमीटर बड़ा है इसलिए थिक एंड हेवीली डोप्ड, बेस छोटा है इसलिए थिन एंड लाइटली डोप्ड, कलेक्टर बड़ा है तो इसलिए थिक एंड मॉडरेटली डोप्ड। तो ये मॉडरेटली डोप्ड है, ये लाइटली डोप्ड है और ये हेवीली डोप्ड है, एचएलएम, एचएलएम याद रखो, बस खत्म, एमीटर बेस कलेक्टर एचएलएम, एच स्टैंड्स फॉर हाई, एल स्टैंड्स फॉर लो एंड और लाइटली, और एम स्टैंड्स फॉर मॉडरेट। ये भी थिक है, ये भी थिक है और ये थिन है, देखने से पता चल जाएगा आपको, ये डायग्राम याद रखो बस, ठीक है, ये वाला स्लाइड खत्म, ये डायग्राम याद रखना है बस आपको, एमीटर हेवीली डोप्ड, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड, बेस लाइटली डोप्ड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान में रखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो आपका एमीटर और कलेक्टर ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सेम है, यस और नो, एमीटर एंड कलेक्टर आर ऑलमोस्ट सेम, सेम साइज के दिख रहे हैं आपको, एमीटर एंड कलेक्टर आर ऑलमोस्ट सेम, सेम साइज के दिख रहे हैं। तो एक चीज ध्यान में रखो कि दोनों में जाने वाला करंट भी सेम रहेगा, देखो आईसी इज अबाउट 95% ऑफ आईई, दोनों का करंट भी ऑलमोस्ट सेम है, देखो 95% मतलब क्या है, 100% के करीब करीब है, तो जितना आई रहेगा उतना ही आईसी फ्लो होगा, तो हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं, आईसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईई, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही वैसा किया है, आईसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईई, आईसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईई, ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं आईसी इज डैश आईई, तो मैंने आपको ऑप्शन दिए इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, और सॉरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लेस देन, और मैं दूसरा देता हूं इक्वल टू और नन ऑफ द अबव। क्या आंसर दोगे, नहीं नहीं, दो दिए देखो मैंने, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू और इक्वल टू दोनों भी दिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है कि 100% इक्वल टू है, अब इसमें से मोर करेक्ट आंसर पे टिक मार करना है, A, B is less than, A is approximately equal to, C is exactly equal to, and D is none of the above। Exactly तो equal to नहीं है, approximately equal to, क्योंकि 100% नहीं आएगा उसमें से, क्योंकि बेस बीच में बैठा है ना खाने के लिए, कमीशन कौन खा रहा है बीच में, बेस बैठा है बीच में, वो थोड़ा बहुत लेगा और फिर बाकी आगे जाने देगा, तो इसलिए कमीशन कौन खा रहा है बीच में, बेस है, बैठा है कमिश्नर वहां पे कमीशन खाने के लिए, तो बेस इज द थोड़ा खाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। इज इट क्लियर, बाकी ये फॉर्मूला बाय कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपको अल्फा दे देगा या बीटा दे देगा और अल्फा निकालने के लिए बोलेगा, या अल्फा दे देगा और बीटा निकालने के लिए बोल देगा, तो ये दोनों फॉर्मूला बाय करना है आपको ये स्लाइड में, ठीक है। और जैसे वो देगा अल्फा दिया तो अल्फा लगाओ, बीटा लिया तो बीटा लगाओ और उसका आंसर निकालो। लास्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये गेट के बारे में, लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये गेट के बारे में। गेट का मतलब क्या है, गेट का मतलब क्या है, आने जाने का रास्ता, सिंपल, गेट का मतलब क्या है, आने जाने का रास्ता। तो करंट कैसा फ्लो होगा उसको हम लोग बोलते हैं गेट, करंट कैसा फ्लो होगा उसको हम लोग बोलते हैं गेट। तो उसके ऊपर हमने लॉजिक बनाए, यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पे मैथ्स चलता नहीं, यहाँ पे लॉजिक है। लॉजिक क्या, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, अभी लॉजिक क्या देखो, मेरे को हिप्परगी सर का क्लास पसंद आया तो मैं बैठूंगा या नहीं बैठूंगा, यस और नो।
If I like the class of Hipparchy sir, shall I sit for the class or shall I leave the class? Attend the class or leave the class? क्या करोगे? A और L. Attend the class or leave the class? क्या करोगे? यहाँ पे कोई मैथ्स लगा अपना? यहाँ पे कोई मैथ्स लगा क्या? यहाँ पे मैथमेटिक्स लगा क्या अपना? नहीं. तो जहां पे आप सोच के सिर्फ लॉजिकली आंसर देते हो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक्स. लॉजिक का मतलब क्या है? आपको सोचना है और आंसर देना है. नो मैथमेटिक्स. Logic is not equal to mathematics. Logic is where you apply your thought and then you say yes or no. और इसका हमेशा आंसर या तो yes रहेगा या तो no रहेगा, या तो हाई रहेगा या तो लो रहेगा. समझ में आ रहा है? yes और no और हाई और लो, क्योंकि दुनिया इसी पे कायम है. दुनिया इसी पे कायम है. फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपके लिए क्लास लू या ना लू, मेरा लॉजिक बोलता है यस तो मैं लूंगा, नो बोला तो मेरा पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, मैं कहीं और चले जाऊंगा. मैं आज फिल्म को जाऊं या नहीं जाऊं, फिल्म को जाना है तो मेरा टाइम कहां पे वेस्ट होगा मुझे मालूम है, और फिल्म को नहीं जाना है पढ़ाई करना है तो मेरा टाइम कहां पे यूटिलाइज होगा मुझे मालूम है. तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस है. पूरी दुनिया इस पे कायम है. यस और नो, ये दो ही क्वेश्चन के ऊपर पूरी दुनिया चलती है. करना है नहीं करना है, खाना खाना है नहीं खाना है, सोना है नहीं सोना है, उठना है नहीं उठना है, अलार्म लगाओ कि नहीं लगाओ, ओनली यस एंड नो. सब आपके क्वेश्चन यस एंड नो मतलब लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है. तो नॉट क्या होता है? देखो नॉट क्या होता है, अगर मैंने इनपुट कुछ भी नहीं दिया और मेरा आउटपुट फुल आ रहा है तो उल्टा हो गया. उल्टा हो गया, रिवर्स हो रहा है. इनपुट मैंने 1 दिया और आउटपुट मेरा 0 आ रहा है. देखो मैंने इनपुट में कुछ दिया और आउटपुट मेरा कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया? उल्टा हुआ कि नहीं मेरा आउटपुट इनपुट का? तो इसलिए हमने उसको नाम क्या दे दिया? नॉट. नॉट मतलब रिवर्स. नॉट मतलब रिवर्स, मतलब क्या? इनवर्ट, उल्टा. उल्टा कर दो. ये पेन ऐसा है ना, तो इसको उल्टा करके आउटपुट में दे दो. दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन. जो भी मैं इनपुट में दूंगा उसका आउटपुट क्या आएगा? उल्टा आएगा. क्या आएगा? हमेशा उल्टा. तो इसलिए नाम क्या दिया? देखो इनवर्ट. इनवर्ट, इनवर्ट का मतलब उल्टा. रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा. नॉट, नॉट मतलब क्या? नॉट मतलब क्या? जो हाँ बोलूंगा तो तुम ना बोलोगे, मैं जब ना बोलूंगा तुम उसको हाँ बोलोगे, तो नॉट हो गया. तो इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया है? नॉट गेट. और इसका कैसे देखो सिंबल डायोड के जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमने 0 लगाया है. 0 क्या करता है? 0 स्टैंड्स फॉर इन्वर्जन. y इक्वल टू x बार. x में आप 1 दे दो, 1 का बार मतलब कितना हो गया? 0. x को आप 0 दे दो तो 0 का बार कितना हो गया? 1. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉजिक गेट. लॉजिक गेट मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं आपको, आप कभी भी क्या बोलते हो, मतलब मूवी के लिए जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो आप क्या बोलते हो? वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, वो नहीं आएगा तो मैं आऊंगा. तो कौन सा गेट लगाया आपने? कौन सा लॉजिक लगाया? वो आया तो मैं नहीं आऊंगा, वो नहीं आया तो मैं आऊंगा. कौन सा लॉजिक लग गया? नॉट लॉजिक लगा कि नहीं? सब लोग एग्री करते हो कि नॉट लॉजिक लग गया? तो दैट इज कॉल्ड एज नॉट. तो आउटपुट में मैं हूं, अगर वो है तो मैं नहीं हूं, वो नहीं है तो मैं हूं, तो ये बोलते हैं हम लोग इसको लॉजिक. ठीक है, तो ये पहला गेट हो गया. दूसरा गेट क्या है? देखो और गेट. और गेट, और गेट. अब और गेट का मतलब क्या? ध्यान से सुनो. और गेट का मतलब क्या? ध्यान से सुनो. मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूं, उसके हिसाब से बताओ. आपको एडमिशन लेना है, सपोज हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक एग्जांपल पकड़ो. तो हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट्स को आना जरूरी है. तो आपके पिताजी या माताजी आ गए, कोई भी एक, तो काम चल जाएगा मेरा. पिताजी या माताजी दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो मैं आपको एडमिशन दूंगा कि नहीं दूंगा? यस और नो? कोई भी एक, आइदर फादर और मदर, तो भी मैं आपको एडमिशन दूंगा. अगर दोनों भी आ गए तो मैं आपको एडमिशन से मना कर दूंगा क्या? सपोज दोनों भी आ गए, सो शैल आई डिनाई योर एडमिशन, और मतलब मैं मना कर दूं या हाँ बोलो? शैल आई से यस और नो? अगर आपके पिताजी माताजी दोनों भी आ गए, मैंने और बोला है, लॉजिकली देखो, आप बैठे हो, आपके पिताजी भी आ गए माताजी भी आ गए, मैं बोला नहीं नहीं आप दोनों आ गए मैं एडमिशन नहीं दूंगा, ऐसा चलता है क्या? ऐसा चलता है क्या? नहीं चलता ना. तो इसका मतलब क्या? और का मतलब क्या? दोनों में से कोई एक अवेलेबल होना चाहिए, या तो आपके फादर या आपके मदर, या दोनों भी अगर अवेलेबल रहे. तो तीनों केस में देखो मैंने आपको एडमिशन दिया है, बट आपके फादर और मदर दोनों भी नहीं आए तो मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा. कैसे? देखो सिंपल सा लॉजिक. और गेट, दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, दोनों होगा तो भी चलेगा, मेरा एडमिशन फिक्स्ड है सर. बट दोनों भी नहीं आए तो मैं कैसे एडमिशन दूं? मुझे साइन चाहिए ना तुम्हारे पिताजी या माताजी का, तो मैं कैसे एडमिशन दूं? तो और समझ में आ गया. और का मतलब है आइदर दिस और दिस. यार ऋतुजा, दिस इज अ नाइस ट्रिक. आइदर दिस और दिस, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए. दोनों भी रहे तो भी चलेगा, दोनों भी नहीं रहे तो दोनों भी नहीं, तो मैं एडमिशन नहीं दूंगा. ठीक है. अब तीसरा देखो, एंड गेट. एंड का मतलब क्या? देखो एंड का मतलब क्या है? और नहीं है, ये एंड है, दोनों भी चाहिए. अब इसका एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. आप किसी शादी में गए, आप कहां पे गए भाई? किसी की शादी में गए, तो वहां पे 2 चेयर रखे रहते हैं. 2 चेयर रखे रहते हैं. किस किस के चेयर रखे रहते हैं? एक तो ब्राइड रहता है और दूसरा ग्रूम रहता है, मतलब
हस्बैंड और वाइफ के रखे रहते हैं, या जो शादी करने वाले। अब दोनों में से कोई एक आया तो आप वहां पे शादी हो जाएगी क्या? लड़का आ गया, लड़की नहीं आई, या लड़की आ गई और लड़का नहीं आया, तो शादी हो जाएगी क्या वहां पे? शादी हो जाएगी क्या वहां पे? यस और नो? नहीं। और अगर दोनों भी नहीं आए तो शादी हो जाएगी क्या? दोनों भी चाहिए ना। कितने चाहिए वहां पे? दोनों लड़का लड़की चाहिए कि नहीं? तो देखो, जब ये दोनों अवेलेबल होंगे तो ही शादी होगी सर। दोनों भी नहीं है तो भी शादी कैंसल। लड़का भाग गया, लड़की अवेलेबल है तो भी शादी कैंसल। लड़की भाग गई, लड़का अवेलेबल है तो भी शादी कैंसल। कौन चाहिए यहाँ पे? कौन चाहिए यहाँ पे? दोनों भी चाहिए। तो एंड को आप मैरिज से कंपेयर करो, एंड को आप मैरिज से कंपेयर करो, आपके दिमाग में लॉजिक बैठ जाएगा। और को आप किससे कंपेयर करोगे? एडमिशन से। मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए। और नॉट का मतलब आपको फिल्म से कंपेयर करना है कि वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा सर, और मैं गया तो उसको नहीं आने दूंगा। तो फिल्म से कंपेयर करो। तीनों को मैंने आपको एक एक लॉजिक दे दी। इतना सा ध्यान में रखो, आप आराम से कर लोगे, आप आराम से लिख लोगे। दोनों भी नहीं है, 0 मतलब नहीं, 1 मतलब है। हाई, 1 इज हाई, 0 इज लो। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? 3 गेट्स, 3 गेट्स। हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड पे आ गए। 3 गेट्स, एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? वेरी नाइस। अब हम लोग लास्ट का देखेंगे, नैंड। देखो क्या है नैंड? नैंड मतलब नॉट एंड। तो किसका उल्टा होना चाहिए? कौन से गेट का उल्टा होना चाहिए? या श्रुतिका, दैट वाज अ वेरी नाइस एग्जांपल। किसका उल्टा होना चाहिए? नैंड किसका उल्टा होना चाहिए? नॉट एंड। तो कौन से गेट का उल्टा होना चाहिए? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। कौन से गेट का उल्टा होना चाहिए? कौन से गेट का उल्टा होना चाहिए? नॉट एंड। देखो नाम क्या है, नैंड का मतलब क्या है? नॉट एंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं नैंड। तो किसका उल्टा होना चाहिए भाई? नैंड गेट का। तो नैंड गेट का आउटपुट देखो आपका क्या था? नैंड गेट का, सॉरी, एंड गेट का आउटपुट क्या था? 0001 था। देखो 0001 था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बोलो मुझे? 1110, 1110, यस और नो? 1110, यस और नो? 1110, यस और नो? ओके, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? आउटपुट दिख रहा है? आप एंड याद रखो, नॉट एंड या नैंड आपको याद रह जाएगा। एंड याद रखो, नॉट एंड आपको याद रह जाएगा। एंड का अपोजिट। सिमिलरली नॉर गेट, नॉर गेट का मतलब क्या हो गया? नॉट और, नॉट और का अपोजिट क्या बन गया भाई? और का अपोजिट। और का आउटपुट क्या था? देखो आपके पास 0111 था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1000, 1000 शुड बी द आउटपुट ऑफ नॉर गेट। चेक करो 1000 आया कि नहीं है? खत्म। तो आपको कौन से गेट ज्यादा ध्यान में रखने? ये 3 गेट, दीज आर कॉल्ड एज बेसिक गेट्स। These are called as basic gates। तो ये तीनों गेट ध्यान में रखो, ये दोनों गेट आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है नैंड मतलब एंड का अपोजिट, नॉर मतलब देखो नॉर एन और, नॉर एन एंड नैंड। तो आप कर लोगे काम। डन? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? एंड दीज टू गेट्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स। इसी को क्या नाम दिए गए? ये याद रखो। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है। विच आर यूनिवर्सल गेट? वो देगा आपको एंड और नॉर। अगर उसने ऐसा आंसर दिया, देखो विच आर यूनिवर्सल, विच इज द यूनिवर्सल गेट, और उसने ऑप्शन क्या दिया आपको? एंड और नॉर और दूसरा दिया एक्सॉर। तो आप किस में टिक मार्क करोगे? ए बी सी डी, जल्दी से। एंड और नॉर एंड एक्सॉर। क्या पूछा? यूनिवर्सल गेट कौन सा है? यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट कौन सा है? तो आप किस पे टिक मार्क करोगे? नॉर पे टिक मार्क करोगे। अगर उसने नैंड दिया होता तो नैंड पे भी टिक मार्क कर सकते हो आप लोग। अगर उसने ऐसा दिया, देखो अभी एक और क्वेश्चन वो कैसा दे सकता है? एक और क्वेश्चन वो ऐसा दे सकता है कि एंड भी दिया है और नॉर भी दिया, सॉरी, और नॉर भी दिया है, नैंड भी दिया है, और वो बोलता है कि बोथ बी एंड सी। तो किस पे टिक मार्क करोगे? 1 2 3 4। नैंड भी दिया है, नॉर भी दिया है, एंड भी दिया है, और बोथ बी एंड सी भी दिया है। तो आप किस पे टिक मार्क करोगे? 1 2 3 4। 4 शुड बी योर आंसर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि नैंड एंड नॉर दोनों भी यूनिवर्सल गेट है। और किस लिए यूनिवर्सल गेट बोलते हैं हम लोग? ये दोनों यूज करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल, एनीथिंग इज पॉसिबल। ये दोनों गेट यूज करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। इतना ही मैं बताऊंगा आपको, इतना ध्यान में रखो, ठीक है? क्यों इसको यूनिवर्सल नाम दिया गया है? क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली चैप्टर बहुत बड़ा है, 7 से 8 टॉपिक है इसमें, बट मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना बता रहा हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये दूसरा क्या है पता है क्या? ये देखो, ये एक्सॉर गेट है, ये एक्सॉर गेट है। अब एक्सॉर गेट का मतलब क्या? देखो, दोनों भी नहीं रहे
और दोनों भी रहे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, दोनों भी आ गए तो भी मैं नाराज हूं, दोनों भी नहीं आए तो भी मैं नाराज हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, दो लोगों का झगड़ा हो गया है, अब इसको कैसे याद रखना है, देखो फाइट, फाइट। अब मुझे उन दोनों को समझाना है, तो पहले मैं एक एक को बुलाऊंगा कि दोनों को एक साथ बुला के समझाने की कोशिश करूंगा? क्या करूंगा? शैल आई कॉल वन बाय वन और बोथ टुगेदर? वन बाय वन और बोथ टुगेदर। मैं उसको वन बाय वन बुलाऊंगा कि दोनों को एक साथ बुला के झगड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा? पहले वन बाय वन बुला के पूछूंगा ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप मीडिएटर हो ना, आप बीच वाले हो जो आपको झगड़ा सॉल्व करना है, तो आप दोनों को एक साथ बुलाओगे तो वहीं पे झगड़े चालू हो जाएंगे, और दोनों को नहीं बुलाओगे तो झगड़ा कैसे सॉल्व होगा? तो आपको क्या करना है, इधर इसको बुलाओ पहले उसका सुन के लो, फिर इसको बुलाओ पहले उसका सुन के लो, और फिर झगड़ा मिटाओ, लास्ट में आप दोनों को बुलाओ, चलेगा? तो यहाँ पे आप वन बाय वन बुलाओगे। तो जब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों में से कोई एक अगर अवेलेबल है तो मेरा काम खत्म हो रहा है, झगड़ा सॉल्व हो रहा है। दोनों भी नहीं आए या दोनों भी एक साथ आ गए तो मेरा झगड़ा सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसको किससे याद रखोगे आप? रिमेंबर इट विथ फाइट। खत्म, खत्म। दोनों भी नहीं रहे तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों भी आ गए तो भी काम नहीं होगा, एक बाय एक आना चाहिए, तब मेरा काम होगा। दैट्स व्हाई वी हैव सेड दैट दिस इज हाई एंड दीज आर लो। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? ऑल द लॉजिक्स आर क्लियर विद इट? पूरा चैप्टर समझ में आ गया? मैं थोड़ा फास्ट किया लास्ट में, अग्री करता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, बट फिर भी आई होप कि एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग कि मैंने क्या दिया है। मैं ये पीपीटी आपको भेज दूंगा, दोनों भी, ब्लैंक भी भेजूंगा। थैंक यू सुदेंशा। मैं इसका आपको जो लिखा है मैंने वो भी भेजूंगा, और जो नहीं लिखा है वो भी भेजूंगा। थैंक यू साक्षी फॉर द फीडबैक। दोनों भी भेजूंगा मैं आपको, दोनों को आप यूज करो, ब्लैंक वाला भी यूज करो, और जहां पे आपको लगता है कि सर का लिखा हुआ चाहिए वो भी यूज करो। मैं दोनों भी अपलोड करने के लिए बोलूंगा। थैंक यू ऋतुजा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है सर, आज का आपका लेक्चर यूट्यूब चैनल पे अपलोड कीजिए। डेफिनेटली करने वाला हूं मैं, डेफिनेटली करने वाला हूं, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर द फीडबैक, थैंक यू फॉर द फीडबैक। मैं डेफिनेटली इसको अपलोड करूंगा। उससे पहले 2 से 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग लीव करेंगे। चाहिए तो आप बाद में फीडबैक दो, आपकी मर्जी है, अगर आपके पास कितना टाइम है आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है। NAND gate means inversion followed by AND gate followed by inverter, AND gate followed by OR gate, none of this। NAND gate देखो कैसा है, ऐसा है, सॉरी, NAND गेट आपका ऐसा है। तो इन्वर्जन आगे है कि पीछे है? इन्वर्जन फ्रंट में है कि बैक में है? इन्वर्जन फ्रंट में है कि बैक में? F और B, ये राउंड इन्वर्जन होता है, तो फ्रंट में है कि बैक में है? फ्रंट में है कि बैक में? फ्रंट में ना, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एंड गेट्स फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। फॉलोड बाद में आएगा इन्वर्टर, इन्वर्टर आगे देखो, नैंड गेट ऐसा बनता है, उसका सिंबल ऐसा है, ये इन्वर्टर है। ठीक है ना? तो कहां पे दिख रहा है आपको? बाद में दिख रहा है, इसलिए हम बोलेंगे फॉलोड, फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। ठीक है। टू इनपुट एक्सक्लूसिव नॉर गेट गिव्स हाई आउटपुट। हाई आउटपुट कब देगा? एक्सऑर, एक्सनॉर आपको हाई आउटपुट कब देगा? एक्सनॉर आपको हाई आउटपुट कब देगा? ये एक्सऑर है, तो एक्सनॉर क्या हो जाएगा बोलो? 1001। तो हाई कब दे रहा है? जब वो दोनों भी नहीं है या दोनों भी प्रेजेंट है। ये एक्सनॉर की बात चल रही है, नॉर है देखो यहाँ पे, और नहीं है, एक्सनॉर है। तो एक्सऑर का उल्टा, तो एक्सऑर का उल्टा क्या हो गया? 1001, क्योंकि एक्सऑर क्या था? 0110 था। तो जब दोनों भी नहीं है और जब दोनों भी है तभी मुझे आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है? when one of the input is high and the other is low, wrong। when both the inputs are low, wrong। when both the inputs are same, बरोबर है आंसर। देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, दोनों जब सेम है तब आपको 1 मिल रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? what shall be the answer? C। वेरी गुड ऋतुजा, द आंसर शुड बी C। एक्सॉर का उल्टा, नॉर आ गया मतलब जो एक्सॉर है उसका उल्टा देखना है। ठीक है। विच ऑफ द लॉजिक गेट इज एज यूनिवर्सल गेट? जल्दी से बोलो मुझे इसका आंसर, कौन सा यूनिवर्सल गेट है इसमें से? ABCD, कौन सा यूनिवर्सल गेट है? विच वन इज यूनिवर्सल गेट? D is the answer। वेरी नाइस, NAND and NOR, D is the answer। ठीक है। द आउटपुट ऑफ OR गेट इज 1। OR गेट का आउटपुट कब 1 होता है? जब बोथ 0 है तब चलेगा। इफ आइदर ऑफ द इनपुट्स और बोथ द इनपुट्स आर 1 तब चलेगा। ठीक है। इफ ओनली बोथ द इनपुट्स आर 1 तब चलेगा, या इफ आइदर इनपुट इज इक्वल टू 0 तब चलेगा। मतलब ये आपको किससे कंपेयर करना है? एडमिशन से, एडमिशन से कंपेयर करो, तो दोनों रहेंगे या दोनों में से कोई एक रहा तो भी चलेगा, राइट? तो इसलिए क्या आंसर होना चाहिए इसका? वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी, दोनों में से कोई एक भी चलेगा।
ठीक है. इन्वर्टर इज, इन्वर्टर कौन सा गेट है? इन्वर्ट, उल्टा. उल्टा कौन करता है? इन्वर्टर इज. कौन सा गेट है वो? एबीसीडी में से कौन सा आंसर आएगा? जल्दी से. इन्वर्टर उल्टा, एबीसीडी, जल्दी से. एवरीबडी शुड रिप्लाई. सब लोग रिप्लाई करेंगे. एबीसीडी कौन सा गेट है? ए है, उल्टा. इन्वर्टर का मतलब ही उल्टा होता है सिद्धि विनायक. इन्वर्टर, इन्वर्ट मतलब उल्टा करना, उल्टा मतलब नॉट. ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको. एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, कितना है भाई? हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना है? 80 है, 60 है, 50 है कि 40 है? कितना है? डी इज द आंसर. डी इज द आंसर. दैट्स इट. ये मेरा नंबर है. आपको इस टॉपिक से कभी भी कुछ भी डाउट रहेगा, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी और कॉल मी एट दिस नंबर. डोंट वरी अबाउट द टाइम. 10:30 से पहले आप, रात के 10:30 से पहले आप कभी भी मुझे मैसेज एंड कॉल कर सकते हो. 10:30 के बाद फिर अगले दिन कॉल करो. हाँ, एग्जाम से एक दिन पहले रात को कभी भी कॉल करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा. थैंक यू ऋतुजा फॉर द फीडबैक. बट मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. 10:30 से पहले आप कभी भी कॉल करो. एग्जाम से एक दिन पहले आप मुझे रात भर भी कॉल करो, मैं फोन उठाऊंगा. क्लियर है? ये मेरा नंबर नोट डाउन कर लो. एवरीबडी शुड नोट डाउन दिस नंबर. थैंक यू श्रुतिका फॉर द फीडबैक. एवरीबडी शुड नोट डाउन दिस नंबर. एग्जाम से एक दिन पहले आप मुझे कभी भी कॉल करो. सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे मैं आपको आंसर दूंगा. लेकिन उससे पहले हमेशा 10:30 से पहले आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो. ठीक है? फ्रॉम माय साइड इट इज ओवर. एंड आई थिंक देशमुख सर है. Thank you, sir. Thank you. देशमुख सर, या प्लीज सर. Sir, thank you very much, Hipparge sir, for the wonderful lecture. And definitely our 12 students will get the benefit and whatever you have taught today. Yes, So I request all the students to contact Hipparge sir if you have a problem. So with this, I declare that this session is over. Thank you, Hipparge sir. Thank you all. Thank you all. Thank you all the students for the energetic reply. All right. You And have given a very nice reply. Yes. For each of my question. I think you are the best students, that those who can do well in CET. Please do well in CET. और CET मैंने आपको पहले ही बोला है, सारे क्वेश्चन को टच करने के लिए सारे क्वेश्चन गलत मत करो, सिर्फ ध्यान दो कौन से क्वेश्चन को टच करना है. दिस वुड बी द वन एडवाइस दैट आई वांट टू गिव इट टू यू. इसके अलावा मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगा. आप मुझे पर्सनली कॉल करो, मैं आपको बाकी की एडवाइस दूंगा. ठीक है? थैंक यू ऑल. थैंक यू ऑल. ओके सर. सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की शेड्यूल आपल्याला सर्वांना पाठवण्यात आलेला आहे. फक्त रोज 10 ते 11:30 हे या टाइम मध्ये फक्त एकच लेक्चर होईल आणि तुम्हाला शेड्यूल तसं पाठवण्यात आलेलं आहे. सो विथ दिस आय थिंक विल स्टॉप ओव्हर हिअर अँड विल मीट टुमॉरो ॲट 10 o'clock. थँक यू व्हेरी मच अँड बाय.